वेलकम सर। साहब आ चुके हैं हमारे बीच में। स्वागत है सर आपके आने से। हमारे हेड ट्रेनिंग्स एंड स्किल डेवलपमेंट। साहब आ चुके हैं। स्पीकर प्रोफेसर श्रीवास्तव भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। सर आपका स्वागत है। Welcome in this program, Professor R.K. Nema sir, our Dean Faculty of Agricultural Engineering, Professor M.K. Avasthi sir, our Head Training and Skill Development, Professor Lukesh Srivastava sir. Today's speaker. Good morning, Dr. Avasthi sir ji. Good morning. Sir ji, good morning, sir. Good morning. How are you? सर सब ठीक ठाक हैं? हाँ, सभी ठीक सर, सभी ठीक, सभी ठीक। So welcome, Abhinandan. The auspicious occasion of World, as we all know, our planet is facing so many stress, and as a thought, as an ideology, we always say Mata Bhumi Putru Aham Prithivya. But in our deed, in our working, how it is, what should be done, how it is, scenario of rapidly changing environment, rapidly emerging such pandemics, global warmings, huge loss of population, decreasing resources. There are so many things. And in all contexts, it become very important, very relevant to talk how to save our planet. The theme given by the UN for this is also restore the earth. Now the question is, how can we restore the earth? So earth means what? Nothing but a piece of land or the total earth. That means total environment, total cosmos, total. So how to proceed? What is the way ahead to have a thorough knowledge of all such things? The agriculture. मास्टर जी, आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं आ गया हूँ। मेरा कैमरा, मैं हमारे स्पीकर आई एम वेरी मच थैंकफुल डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव सर, आपका स्वागत है सर हमारे सर नमस्कार परिवार में कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अंतर्गत। वाजपेयी साहब आवाज आ रही है मेरी? अब जी जी अब बिल्कुल आ रही सर, आ रही है, आ रही। थैंक यू सर। So all is required today
So to have a thorough knowledge of all these things, we have requested a very learned faculty of Rani Durga Vidyalaya, Professor Lokesh Srivastava. Dr. Lokesh Srivastava is professor and heading the very prestigious chair of the PG Studies and Research in Geography, besides heading the tribal studies also. And Dr. Srivastava is a very learned personality of this Vishwavidyalaya and this field. He is having more than 100 publications on his credit. He has guided, I think, maybe more. So far as I know, 17 PhD theses, more than 100 MPhils, and he has completed 4 research projects, and he has completed many textbooks, many research editings. He is affiliated with many societies, and presently he is vice president of this NEGI, National Association of Geographer India. So I welcome you, sir, in this family of Nahib and College of Agricultural Engineering, JNKV, Jabalpur. Now, for having a opening remark and welcome address, I would like to request Professor M.K. Awasthi, sir, our head trainings and skill development. So, Professor Awasthi, sir, please. Dr. Srivastava, thank you very much. Let me welcome Dr. Lokesh Srivastava, head IDBV for the PG studies. We are very thankful to you just to accept this keynote address in a very short time. Actually, this program is arranged on the National Earth Day. We should not say the National Earth Day. It is actually the Earth Day itself. We are running this program in a project which is recently given to our university. It is a World Bank funded project and partly funded by the ICR, Indian Council of Agriculture Research. This is around 19 crore projects, and we are having the mandate of skill development to use the spatial data. As we are aware that today's knowledge is not completed unless you see it in a very broader sense, because remote sensing and GIS is the mandatory things in today's research in all fields of the sciences, particularly in geography as well as in agriculture. The second mandate of our project is to have the research. In that we have different discipline wise students who really carry out their research work in the field of agriculture by using the remote sensing and GIS as a tool for their respective field. Actually, this program or you can say this particular lecture, we have arranged to have the significant guidance by Dr. Lokesh Srivastava. As we are the science faculties and we are doing everything, but we are actually systematically not knowing what actually the climate or what environment do with the different geographical locations. That's why we have requested Dr. Srivastava to just give the glimpses how this climate or environment is really affected due to the different geographical situation of the world. In these few words, I just welcome Dr. Lokesh Srivastava to their knowledge or have their experiences just to share with us. Thank you very much. Thank you, sir, for briefing us, and our dean and principal investigator for this project, Dr. Nema, is also with us. I welcome you, sir. And now, with permission to chair, I would like to request
speaker, Dr. Lokesh Srivastava, sir. Kindly enlighten us. Professor Srivastava, please. Sir, thank you very much. Professor Nema sir and Professor R.S. Srivastava sir. Thank you very much for inviting me in this platform, or we can say this program or webinar, whatever it is there. As I was told by Professor Srivastava that this is a program by World Bank, and students of research and PG students are in this program. They are included in this meeting. And I was told to give the glimpses of geography and related topic with the environment. Basically, you are very much aware of the agriculture field and related soil production and other things, and how the geography is involved in these activities and the matter that I am going to discuss in brief, as I am directed by Professor R.N. Srivastava to give a brief in how the geography works in the field of agriculture and other components. Just I am sharing my PPT in that. Please allow me to share the things, Manoj Kumar ji. Okay, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Welcome, sir. Is it visible, sir? Yes, sir. Clear, sir. Is it visible? Yeah, sir. It's visible. Clear. PPT is visible. Yes, sir. It is visible. Clearly visible. राइट सर, ज्योग्राफी की हम अगर यहाँ बात करें तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो पहले हम ज्योग्राफी के एस्पेक्ट को देखेंगे कि व्हाट इज द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी क्या है, पहले हम थोड़ी सी चर्चा इसमें कर लें सामान्य भाषा में। बहुत साधारण सी भाषा में कहें कि भूगोल क्या है। भूगोल ज्योग्राफी का पर्याय नहीं है, मीनिंग नहीं है, इस पे हम ना जाएं। ज्योग्राफी उसका अनुवाद भी नहीं है, ये बात हम बाद में डिस्कस करेंगे या कभी फिर डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है या डिबेट का विषय है। तो भूगोल सामान्य तौर पर ज्योग्राफी को हम कहते हैं, लेकिन भूगोल क्या है इसकी बात अगर कहें तो हम जो भी दृश्य देखते हैं वो एक समान तौर पर भूगोल है। भूगोल पृथ्वी के निर्माण से लेकर आज तक तमाम परिवर्तन की अवस्थाओं और दशाओं से गुजरता हुआ आज की स्थिति तक हम देख रहे हैं। और इसका अध्ययन की अगर बात कही जाए तो मानव के निर्माण से लेकर मानव के जन्म से लेकर आज तक भूगोल का अध्ययन प्रारंभ हो गया था। मनुष्य ने जब भी क्रियाकलाप प्रारंभ किए थे वो भूगोल का प्रथम क्रियाकलाप था, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मनुष्य और पृथ्वी के रिलेशनशिप को हम पढ़ते हैं। मनुष्य और पृथ्वी के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, मानव और अर्थ के रिलेशनशिप को पढ़ते हैं। हम अभी आगे जाने के पहले हम, चूंकि आपने अभी बताया कि हम अर्थ डे के रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो थोड़ा सा हम यहाँ अर्थ डे की चर्चा कर लें और उसके आगे फिर हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। चूंकि अर्थ डे अभी हमने सेलिब्रेट किया है, अर्थ डे 22 अप्रैल को अभी हमने सेलिब्रेट किया है। लास्ट इसी महीने हमारे यहाँ अर्थ डे हमने मनाया है, और ये अर्थ डे हर साल 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं।
22 अप्रैल को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे हमारे बहुत सारे कारण हैं। इसमें हम लोगों ने अपने अर्थ को इतना एक्सप्लॉइट कर रखा है, तो हमारे लोगों के बीच में दिमाग में एक बात आई कि हम अर्थ को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए कुछ ऐसा प्रयास करें कि जिसमें अर्थ को हम अब जिस अवस्था में है उससे आगे और बचाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो इसको फोकस किया गया 1969 में, ये सेंटा बारबरा में एक यूएस के पास पर एक जो ऑयल का एक वो हुआ, कहना चाहिए एक शिप में ऑयल जा रहा था, तो वो उसमें लीकेज हुआ और उसके परिणाम स्वरूप कोस्टल रीजन में पूरे इलाके में पानी का में एक तेल की परत, ऑयल की परत जमा हो गई और सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रकार की प्रजातियां मरकर समुद्र के किनारे और जमा हो गई और एक समुद्र का वातावरण ही एक दूषित हो गया। तो वहां के लोगों ने ये किया कि हम इसको, ये गलत हुआ, इसका परिणाम जिसने किया है उसको दिया जाना चाहिए और हम इसको रोकें और इस प्रकार की एक्टिविटीज के लिए जो भी दोषी है और उसको हम सामने लेके आए और इस प्रकार की घटनाएं ना घटे। इसलिए 1969 में ये पहली बार एक मूवमेंट चलाया गया और उस परिणाम को 1 साल तक लगा और ये जो ऑयल स्पिल था, ये इसको रोकने का प्रयास किया गया कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। 1960 के बाद से 1 साल के परिणाम स्वरूप 1970 में पहली बार अर्थ डे 22 अप्रैल को एक घोषणा की मैगजीन्स हैस ने कि ये इस प्रकार हम लोग हर साल एक प्रोटेस्ट करेंगे और हम इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे। तो पहली बार ये 1960 से स्टार्ट करती हुई 1970 में ये अर्थ डे का सेलिब्रेशन किया गया और लगातार उसमें इसमें जो फर्स्ट जो पहली बार बनाया गया उसमें इसको मोबिलाइज करने के लिए 20 मिलियन अमेरिकन को यहाँ पर वो किया गया और शामिल करने के बाद इसमें उनको शामिल करके एक मूवमेंट, बृहद मूवमेंट चलाया गया और पूरे वर्ल्ड में इसको पॉपुलराइज किया। फिर इसके बाद ये निरंतर चलता रहा और आगे तमाम कंट्रियों ने इसको ज्वाइन किया और आगे चल के जो 1990 तक जो मूवमेंट चला, इसमें करीब 149 कंट्रीज ने इसमें भाग लिया और ये निरंतर आगे चला। फिर इसको आगे चल के बढ़ाते हुए लेके आए और हर साल इसमें कुछ ना कुछ प्रगति होती गई। दुनिया के तमाम देशों ने भाग लिया, यूएन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया और आगे आज तक लेके आए और 2021 में इसको अर्थ डे के रूप में जो मनाया गया। अभी इस साल इसको यूएन ने जो थीम दिया, उस थीम को दिया गया रीस्टोर अवर अर्थ, यानी कि जो स्थिति आपकी हमारी पहले थी उसको हम रीस्टोर करें अर्थ को, और ये मूवमेंट को चलाते रहें और इस मूवमेंट को चलाया गया। इसका एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, earthday.org पे आप जाएंगे तो एक इसका मूवमेंट का ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये वॉलंटरी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें रजिस्टर हो सकते हैं। मैं भी इसका मेंबर हूं और इसमें आप रजिस्टर होइए। ये दुनिया के इस प्रकार के मूवमेंट्स और जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इस एक्टिविटीज की जानकारी आपको अपने आपके ईमेल पर देगा और ये एक्टिविटीज की जानकारी आप से जोड़े रखेगा और वर्ल्ड में क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं और आप अपने लेवल पे, आपका जो लेवल है उस पे आप क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं। कोई आर्थिक सहयोग नहीं मांगते हैं, लेकिन आपके मेंटल लेवल, आपके एक्टिविटीज के रूप में आप क्या सहयोग प्रदान कर सकते हैं। ये सहयोग प्रदान करने के लिए आपसे सहयोग मांगेगा। एकेडमिक है, सोशल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, फैमिली लेवल पे आप कर सकते हैं, आपके बच्चे क्या कर सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आपके छात्र क्या प्रोजेक्ट बना सकते हैं और किस लेवल पे काम कर सकते हैं। ये तमाम जानकारी आपको earthday.org पे आप रजिस्टर्ड होने के बाद आपसे वो इंटरेक्ट करेगा और तमाम एक्टिविटीज करेगा। ये अर्थ डे का 22 अप्रैल को मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि भूगोल विभाग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी हर साल 22 अप्रैल को एक दो दिवसीय
अर्थ डे का सेमिनार कराता है राष्ट्रीय स्तर का, लेकिन गत वर्ष और इस वर्ष हम लोगों ने इसका ऑनलाइन वेबिनार कराया था। गत वर्ष हम लोगों ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे वेबिनार कराया था। विदेशों से तमाम रिसोर्स पर्संस और पार्टिसिपेंट्स जुड़े थे। इस वर्ष भी हमने इस कार्यक्रम को अर्थ डे का 22 अप्रैल को कराया था, जिसमें तमाम लोगों जुड़कर इसमें भाग लिया था। और ये निरंतर हर वर्ष हम इसको ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की ओर से कराते हैं और निरंतर ये आगे भी कराते रहेंगे। आप और आपके छात्र भी इसमें भाग ले सकते हैं, जिसकी न्यूज और यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर इसकी जानकारी हम हमेशा देते हैं। anyway, ये हमारा एक अर्थ डे का जो मोटिव आपने इसका ड्राइव चलाया है, ये बहुत अच्छा है और इसको निरंतर कंटिन्यू करें। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द ज्योग्राफी। अब हम ज्योग्राफी की बात जो अभी कंटिन्यू कर रहे थे, तो इसको हम करते हैं कि ज्योग्राफी क्या है। अब ज्योग्राफी में हम जो बातें अध्ययन करते हैं, हम ये जानते हैं कि ज्योग्राफी, हम एक बात ये कहना चाहते हैं, ज्योग्राफी को आप इस तरह से समझिए कि हम ज्योग्राफी के साथ पैदा होते हैं और ज्योग्राफी के साथ मरते हैं। हर व्यक्ति ज्योग्राफी जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे शहर का हो, चाहे गांव का हो, चाहे खेतिहर हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, और चाहे वो बिजनेसमैन हो। हर व्यक्ति ज्योग्राफी से कंसर्न है और ज्योग्राफी के बिना उसका जीवन संभव नहीं है किसी भी सूरत में, क्योंकि हर व्यक्ति जो काम करता है वो ज्योग्राफी जानता है, लेकिन ये नहीं जानता कि हम ज्योग्राफी जानते हैं। अगर वो कृषि करता है, अंगूठा छाप आदमी है, लेकिन वो जानता है कि हमको फसल कब बोनी है। वो जानता है कि अब बारिश होने वाली है या बारिश होने की संभावना है तो हम फसल बोएंगे। वो जानता है कि कब हमको हल चलाना है, कब हमको फसल काटनी है, कब हमको खाद देना है, कब हमको पानी देना है, कब हमको, कुछ नहीं जानता, अंगूठा छाप आदमी है। वो जानता है कि अब धूप तेज होगी, अब वर्षा होगी, सारा कुछ जानता है। वो जानता है कि हमको उत्तर दिशा से हवाएं चल रही है, कि अब पूरब से हवाएं चलेंगी, अब पश्चिम से हवाएं चलेंगी। ये सब ज्योग्राफी है, ये सारा कुछ भूगोल है, ये भूगोल के अध्ययन का विषय है। सारा कुछ अध्ययन का विषय भूगोल है। कोई भी चीज जो धरातल से जुड़ी हुई है, पृथ्वी के अंदर है, पृथ्वी के ऊपर है या पृथ्वी से ऊपर है, वो सब भूगोल का हिस्सा है। अब ज्योग्राफी की मॉडर्न जो डेफिनेशन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डेफिनेशंस और थ्योरीज पे नहीं जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए अब जो मॉडर्न डेफिनेशंस दी जा रही हैं, अभी मैंने कहा था द रिलेशन बिटवीन द मैन एंड इन्वायरमेंट, ये थी। अब स्पेशल, अब जो कही जाती है द रिलेशन बिटवीन द स्पेस, मैन एंड स्पेस। अब जो मॉडर्न डेफिनेशंस है, स्थान और मनुष्य के संबंध की बात कही जाती है। तो जहां स्पेस आ जाता है तो वहां आदमी आता ही है, मनुष्य आता ही है। तो स्पेस, अब चाहे वो स्पेस स्थान किसी भी जगह हो, स्पेस चाहे वो समुद्र का हो, चाहे धरातल का हो, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे खेत हो, स्पेस के बिना मनुष्य का एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। तो स्पेस जहां है वहां मनुष्य है और सारी एक्टिविटीज स्पेस पे ही होती हैं। इसकी स्पेस है तो भूगोल है, और स्पेस है तो सारी एक्टिविटीज, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। बिना इन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के हम नहीं सरवाइव कर सकते। अब जहां ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं तो वहां ये 4 फैक्टर्स सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन होते हैं? 4 WS इन ज्योग्राफी। 4 WS क्या होते हैं? व्हाट, क्या, प्रश्न खड़ा होता है कि क्या, वो क्या है? चाहे वो नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, चाहे कृषि हो, चाहे व्यापार हो, तो सारी चीजें, कुछ भी अगर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए, क्या, किसी के चीज के सामने लगा दिए क्या है, तो एक प्रश्न चिन्ह था उसमें। एवरीवेयर इट इज ज्योग्राफी। चाहे वो वृक्ष है तो भी, वृक्ष के नीचे, ऊपर, बीच में, सब जगह ज्योग्राफी इन्वॉल्व है। अब इट इज वेयर, अब वो कहाँ है। अब कहाँ की बात होगी तो उसकी लोकेशन की बात आ जाएगी, कहाँ है। तो वो प्रश्न हो जाएगा कि वो ठंडे प्रदेश में है कि गर्म प्रदेश में है, उसकी जलवायु कैसी है, उसका वातावरण कैसा है, उसका तापमान कैसा है, उसको कितने वर्षा की आवश्यकता है, उसको सॉइल कैसी है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। फिर व्हाई, वो वहां क्यों है, वहीं क्यों है, वो रेगिस्तान में क्यों नहीं है, वो ठंडे प्रदेशों में क्यों नहीं है, वो गर्म प्रदेशों में क्यों नहीं है, वो पहाड़ी प्रदेशों में क्यों नहीं है, वो मैदानी इलाके में क्यों नहीं है, वो समुद्र के किनारे क्यों नहीं है, वो नदी के किनारे क्यों नहीं है। ये अब
दूसरा लास्ट क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन एक बहुत महत्वपूर्ण है, व्हेन मींस टाइम पीरियड, पर्टिकुलरली टाइम में, पर्टिकुलरली समय में वो चीज वहां पर थी या है या होगी। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इन तीनों बात की व्हेन की बात होती है, जिसमें कि ये प्रमाणित करता है कि कभी किसी काल में वो ऐसा था या आज की स्थिति ऐसी है और भविष्य में इसकी स्थिति वैसी हो जाएगी। एक छोटी सी बात की हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत में ऐसे ऐसे फॉसिल्स मिले हुए जिससे इस बात का प्रमाण होता है कि कभी हिमालय पर्वत में समुद्र के जल के अवशेष या फॉसिल्स मिले हैं, यानी कि हजारों लाखों साल पहले यहां पर कभी समुद्र था, यानी कि हिमालय पर्वत में ऐसी परिस्थितियां थी। व्हेन, कभी, पास्ट में। तो व्हेन आप लगा देंगे तो आपको उस टाइम स्केल का एक जानकारी मिल जाएगी, या आगे भविष्य की संकल्पना करें, ये प्रेडिक्शंस करें, टाइम स्केल को आगे लेके जाएं, तो आप करेंगे कि भविष्य में ऐसा होगा। ये चार चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित आपको पूरा ज्योग्राफी का स्केल और सीन सिनारियो समझ में आ जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चार बातें आप जोड़ लेंगे तो एक पूरा दृश्य परिदृश्य ज्योग्राफी का आपको समझ में आ जाता है। इसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह में अप्लाई कर लीजिए आप, चार बातें आपके सामने ये दृश्य खड़ा हो जाएगा। बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं किसी भी मैटर को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी स्थिति को। ये अब ज्योग्राफी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके 5 मुख्य रीजन है जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि ज्योग्राफी में अपने आप सारी बातें आ जाएंगी। इसमें अब आप पढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट को समाहित, होलिस्टिक रीजन को समाहित करते हुए पढ़ेंगे, सारी बातों को इसमें समाहित कर लेंगे। एक परिदृश्य देखिए, इसमें तमाम बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आप अपने आप में देखेंगे तो इसमें जाने कितनी बातें समाहित है इसी सीन में ज्योग्राफी अगर देखें आप तो इसमें ऊपर से देखना शुरू करें क्लाउड्स, या और उसके ऊपर देखें तो ये एटमॉस्फेरिक की लेयर्स है जो ऊपर देखिए आप। फिर इसके बाद क्लाउड्स देखिए, क्लाउड्स के बाद नीचे आइए और नीचे तरह आते जाइए, है इसमें तमाम पर्वतीय प्रदेश। पहले ऊपर देखिए, ये आइस, ये बर्फीला इलाका देखिए, यहाँ का ये दिखाया गया है इसमें। इसके बाद फिर और नीचे आइए, जो टॉप हिल्स हैं वो देखिए, फिर इसके बाद टॉप हिल्स के बाद हिलॉक्स देखिए, फिर इसके बाद माउंटेन्स देखिए, यहाँ पर माउंटेन्स के बाद फिर इसके माउंटेन का वेजिटेशन देखिए, फिर उसके बाद जो लो हिल्स है वो देखिए, लो हिल्स के बाद जो हिल्स में लेक्स बनी हुई हैं, जो आपने पेनोंग लेक और तमाम हिल्स में वो देखिए। हिल्स के बाद फिर जो हिल्स में वनस्पति देखिए, वेजिटेशन देखिए, वेजिटेशन के बाद इसमें आप हिल के ऊपर मैदान देखिए, मैदान के बाद इसमें आप सेटलमेंट्स देखिए, फिर इसके बाद ग्रासलैंड्स देखिए। तमाम ऐसी पर जो है फीचर्स एक साथ इसमें बहुत दर्शाया गया है। दीज आर द ज्योग्राफिकल फेनोमिना। बहुत सारी बातें आगे हम अभी चर्चा करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट। अब ये जो ज्योग्राफिकल थीम के अंतर्गत बातें कहें तो इसके अंतर्गत जो ये 4 बातें हमने कही, आपको इसमें दिखाई गई हैं, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ये बात है, लेकिन इसमें मुख्य स्टडी की बात जो होती है लैंडफॉर्म्स, जो इसके अंदर हम लोग पढ़ना है, ये क्लाइमेट, पॉपुलेशन, कल्चर, ये तमाम बातें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। और इसके अंतर्गत जो 5 थीम्स है वो आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें ये सबसे पहली बात है इसकी लोकेशन, जो मैंने आपको बात कही अभी कि लोकेशन हम जानेंगे कि वेयर कहाँ है ये चीज। हम जिस जगह में बैठे हैं दिस इज द लोकेशन, किसी जगह पे आप बैठे हैं दैट इज द लोकेशन। कहीं से ये ऑपरेट हो रहा है ये सिस्टम पूरा, ये कहीं से गवर्नड हो रहा है दैट इज ए लोकेशन। और कहीं से सारे ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स दुनिया में चल रही होंगी, उसकी भी एक लोकेशन होगी, जो सबको ये वेक्स सिस्टम जो चला रहा होगा इसको भी ऑपरेट करने का एक कोई आदमी बैठा होगा या कोई सिस्टम बैठा होगा, कहीं प्लेस होगा इसका भी, दैट इज लोकेशन। वेयर समवन कैन बी फाउंड ऑन द अर्थ, ये कहीं पे कहीं दुनिया के किसी ना किसी भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे इसकी लोकेशन है। आप मोबाइल में देखेंगे तो आपकी लोकेशन मिल जाएगी, हमारी लोकेशन ढूंढ लेंगे आप। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर बेस्ड होती है, जो कि हमारी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींचकर हम बनाते हैं और एक निश्चित बिंदु पर हम पहुंच जाते हैं कि दैट इज आवर लोकेशन। ज्योग्राफर्स वांट टू नो वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, ये हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहलाती है।
ये काल्पनिक लिखा है, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट होता है, पिन पॉइंट होता है। जो आप ये देखते हैं कि फौज होती है, आपने देखा कि बम बॉर्डिंग होती है या मिसाइल्स हिट करती हैं, ये एक पिन पॉइंट में हिट करती है। अब उनको कैसे मालूम कि पिन पॉइंट क्या है? पिन पॉइंट ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के माध्यम से वो ढूंढते हैं, और वो पिन पॉइंट एग्जैक्ट एक ही बिंदु पर हिट करेगी, चाहे अमेरिका से हिट करिए, चाहे जापान से हिट करिए, चाहे हिंदुस्तान से हिट करिए, वो लोकेशन एक ही पिन पॉइंट पर होगी। वो पिन पॉइंट तीनों जगह, चारों जगह, पांचों जगह से, या नॉर्थ पोल से, या साउथ पोल से, या अमेरिका से, या जापान से, आप कहीं से भी हिट करेंगे, वो पिन पॉइंट वही होगी लोकेशन। वेयर वो वही पॉइंट जहां पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की पोजीशन हम निर्धारित करेंगे, या कोई भी निर्धारित करेंगे, वो लोकेशन डिवेट नहीं करेगी कहीं। ये बोथ बाय देमसेल्फ एंड इन रिलेशन टू द अदर थिंग्स, किसी के बारे में भी हो ये चीज। लोकेशन हैज द टू टाइप्स, बाय एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एग्जैक्ट ये डिटेल में भी इसको हम नहीं जाते हैं, ये समझ लीजिए। दूसरी बात है प्लेस। किसी स्थान की बात करें, दिस थीम considers the characteristics that makes one place difference from all places of the others. सारी लोकेशंस जो हमने प्लेस की देखी है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान की स्थिति अलग है, भिन्न है। सब जगह पृथ्वी गोल है, आप ये जानते हैं, और एक स्थान से दूसरी स्थान की लोकेशन टोटली डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, वहां का धरातल अलग है, वहां की आंतरिक संरचना अलग है, वहां के सारा कुछ अलग है। इस लोकेशन को हम इस माध्यम से, भूगोल के माध्यम से उसकी लोकेशन को देखते हैं और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं लोकेशन। फिर प्लेस इज डिस्क्राइब अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एंड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। अब किसी प्लेस को हम डिस्क्राइब करते हैं किसके आधार पर? उसकी फिजिकल यानी भौतिक संरचना, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी नदी का प्रदेश है, पहाड़ का प्रदेश है, मैदानी इलाका है, या दोनों है, या पठारी प्रदेश है, या उसकी संरचना कैसी है, ये बात होती है। और संरचना के आधार पर वहां का हैबिटेशन होगा, ह्यूमन मनुष्य वहां के रहेंगे। अगर नॉर्डिक प्रदेश में है, ऊपर उत्तरी गोलार्ध में है, या दक्षिणी गोलार्ध में है, या ये कहें कि हम नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है, या हम ये कहें कि इक्वेटर में है, या हम सेंटर में है, अलग अलग लोकेशंस पे पहाड़ी प्रदेश में है, सब जगह के मनुष्य की संरचना, उसकी लिविंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगी। सोमेटिक स्ट्रक्चर, शारीरिक संरचना अलग होगी, बनावट अलग होगी, हाइट, हेल्थ, नाक, नक्शा, कलर, त्वचा का रंग, बालों की बनावट, ये टोटली डिफरेंट होगी एक स्थान से दूसरे स्थान। उसकी भौतिक संरचना के आधार पर उसका मानव की संरचना होगी। ये उसके प्लेस के ऊपर डिपेंड करेगा, मनुष्य की संरचना और उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। अब मानव का वहां के जो भौतिक संरचना होगी, उसकी संरचना के अंतर्गत मनुष्य उसको एनवायरनमेंट के अंतर्गत इंटरेक्ट करेगा। उसका इंटरेक्शन कैसा होगा? जैसी भौतिक संरचना होगी, फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, धरातल की बनावट होगी, वैसे ही अपना रहन सहन, खान पान, भोजन, वस्त्र और सेटलमेंट, ये तमाम चीजें अपने हिसाब से वो वैसा ही बना लेगा। इसके अंतर्गत पीपल इंटरेक्ट इन 3 वेज, 3 प्रकार से वो करेगा, मॉडिफाई, एडॉप्ट एंड डिपेंड। ये 3 प्रकार से कैसे करेगा? कि बर्फ के प्रदेश में रहने वाले इग्लू के घर बनाएंगे, रहना तो उनको बर्फ नहीं रहेगा, और वो इग्लू बनाएंगे, और इग्लू के अंतर्गत चमड़े की जानवरों को मारकर चमड़े की दीवारें बनाएंगे और उसके अंदर रहेंगे। मैदानी प्रदेश वाले हमारे जैसे घर बनाएंगे। जो डेंस फॉरेस्ट है, जो इक्वेटर में पाए जाते हैं, वहां पर लोग पेड़ के ऊपर रहते हैं, पेड़ के ऊपर घर बनाते हैं नीचे, क्योंकि नीचे दलदल रहता है, और वहां पर नीचे पूरे टाइम साल भर वर्षा होने के कारण नीचे का धरातल पूरा दलदली होता है, और उस दलदली में रहना संभव, मकान बनाना संभव नहीं है, कीट पतंगे होते हैं,
और बड़े बड़े जहरीले जानवर होते हैं, इसलिए वहां लाइफ संभव नहीं है। इसलिए वहां वो पेड़ की टहनियों काट करके वहां पर पेड़ के ही वो पटरे या वो प्लैंक्स बिछा बिछा के और वो अपने घर बनाते हैं, कमरे बनाते हैं, और उनकी लाइफ स्टाइल पेड़ों के ऊपर ही रहती है। ऐसे तमाम प्रदेश जो होते हैं वो अपने धरातल के आधार पर, भूमि की बनावट के आधार पर और वहां उपलब्ध वातावरण के आधार पर अपना अपने आप को, अपना जीवन उसी के आधार पर वो एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्टेबिलिटी होती है, या मॉडिफाई करते हैं, या उनके ऊपर निर्भर कर यही भोजन, यही वस्त्र, और उन्हीं के आधार पर वो रहन सहन अपना एडॉप्ट करना होता है। फिर मूवमेंट, हाउ द पीपल, गुड्स एंड आइडिया मूव बिटवीन प्लेसेस। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये मूवमेंट होता है। पीपल इटसेल्फ मूव फ्रॉम हेयर टू देयर। गुड्स, हमारे स्थान को हम अपने जो वहां के प्रोडक्ट्स हैं या वहां पर जो चीजें बहुतायत से मिलती हैं उनके प्रोडक्ट्स को हम दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, या अपने आइडियाज को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते हैं और एक स्थान से वहां के आइडियाज को अपने स्थान पर लेके आते हैं। द मूवमेंट हैज 3 स्पेशल इंटरेक्शन, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड आइडिया। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इंटरेक्शन हमारा होता रहता है, और ये आपस में हम ये आइडियाज और लोग स्वयं हम जाके अपने आइडियाज को वहां देते हैं, लेते हैं, वहां से चीजें लाते हैं और अपने स्थान पर। जैसे मान लीजिए सेब पैदा होता है कश्मीर में। अब सेब इतना पैदा होता है कि वो हमारी खपत से बहुत कहीं ज्यादा होता है। अब सेब की खेती भी ना करेंगे तो भी वो सेब वहां पैदा होता है। अब इतना सेब पैदा होता है कि हमारी आवश्यकता से कहीं बहुत अधिक है, तो हम क्या करेंगे, सेब को अन्य स्थानों पे उसको ट्रांसफर कर देंगे। तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो हमारी आवश्यकता से अधिक होते हैं, उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं और वहां से वो चीजें लेके आते हैं जो वहां पैदा होती है और हमारे यहाँ। ये यहाँ का मूवमेंट होता है। फिर होता है रीजन। द बेसिक यूनिट ऑफ ज्योग्राफिकल स्टडी इज रीजन। जो छोटी यूनिट होती है, बहुत विशाल क्षेत्र से हट के हम बात करें, इट इज डिफाइंड एज ए एरिया दैट हैज बी यूनिफाइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ एक विशेषताओं को लेकर, जिसमें 2 विशेषताएं या 2 से अधिक विशेषताएं एक सी होंगी, तो वो एक रीजन को जो डिफाइन करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स को, वो एक रीजन बना दिया जाएगा। ये इस प्रकार को लेके हम, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो, चाहे वो कल्चरल रीजन हो, चाहे वो भाषाई प्रदेश हो, चाहे उसको हम एक रीजन बना देते हैं और वो एक रीजन डिफाइन कर दिया जाता है। ये ज्योग्राफिकल रीजन हो सकता है, ये पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, ये कल्चरल रीजन हो सकता है, ये एग्रीकल्चरल रीजन हो सकता है, क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, ये कोई भी रीजन इस प्रकार का हम इसमें डिफाइन करते हैं। ये रीजन हो गए। अब ज्योग्राफी की हम ब्रांचेस क्या होते हैं, अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे। ब्रांचेस इसलिए बताना चाहते हैं, ज्योग्राफी इज ए वास्ट एंड बिग सब्जेक्ट, इट कवर्स ऑल द सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट। तो ये हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन हम करते हैं, और फिर आगे हम आते हैं इन्वायरमेंट के पार्ट में। तो इसको थोड़ा सा एक देख लीजिएगा, तो हम इसको बताना चाहेंगे। ये एक क्लासिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्योग्राफी एंड इट्स जो ब्रांचेस हैं उनको हम इसमें बताना चाहेंगे आपको कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, वो हम बताना चाहेंगे। इसको 2 पार्ट में मेनली डिवाइड करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के बहुत सारे पार्ट्स हैं, अभी हम डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा इसको ये देख लीजिए। पहले ये क्लासिकल क्लासिफिकेशन जो अभी पहले चलता था, क्या चाहिए, प्राचीन काल से पढ़ते पढ़ाते आए और हमने तक पढ़ा है ये अपने पोस्ट ग्रेजुएशन होने पे, यानी कि आज से करीब 35 साल पहले से, और मोर देन दैट, उसके पहले ये क्लासिफिकेशन चलता था, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी। देयर आर 2 ज्योग्राफी, 2 प्रकार की ज्योग्राफीज होती थी ये, इसको हम पढ़ते थे, जिसमें ह्यूमन, मानव से निर्मित या मानव जो एक्टिविटीज करता है उसको ह्यूमन ज्योग्राफी लेते थे, और जिसमें मानव का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, सिर्फ नेचर ने हमको दिया था, उसको पढ़ते थे फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत इकोनॉमिक, टूरिज्म, सोशल, कल्चरल, अर्बन, रूरल, सेटलमेंट, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल, रिमोट, और जीआईएस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ट्राइबल एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी चीज पढ़ते थे। और इसमें फिजिकल के अंतर्गत होता था फिजिकल ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ द फिजिकल, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी, हाइड्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी एंड पीडियोलॉजी। ये चीजें हम इसके अंतर्गत पढ़ते थे। इसके बाद ये थोड़ा सा परिवर्तन हमारा आया इसमें ज्योग्राफी में, और ये ज्योग्राफी का
परिवर्तन के बाद एक फिर ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन बाद में दिया गया। ये इसके ज्योग्राफी को 3 पार्ट में परिवर्तित कर दिया गया। आज की तारीख पे हमने क्या कुछ पढ़ा था, अब जो हम पढ़ा रहे हैं वो इसका क्लासिफिकेशन, फिर ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ज्योग्राफी की ब्रांचेस को 3 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। फिजिकल ज्योग्राफी, अब फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पढ़ाने लगे हम लोग। और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी। और ज्योग्राफिक टेक्निक के अंतर्गत हम लोग ले लेंगे मैथमेटिकल, ये नया पार्ट जो जोड़ गया इसमें, ज्योग्राफिक टेक्निक्स, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, कार्टोज्योग्राफी, रिमोट ज्योग्राफी एंड जीआईएस एंड जीएनएमएस। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, वो कैसे कैसे दूसरे सब्जेक्ट से और मल्टीडिसिप्लिनरी कैसे कैसे अप्रोचेस हैं हमारी, और अन्य विषयों से कैसे, हाउ इट इज रिलेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स आल्सो। तो अब इसमें देखिए इकोनॉमिक ज्योग्राफी मेन एक्टिविटीज हमारी होती हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये हर जगह इन्वॉल्व है, और कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं उसमें इकोनॉमिक तो एक्टिविटीज जुड़ी जाती है। अब देखिए ये इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है, इसमें खनन कार्य हो रहा है, और ये एक्टिविटीज खनन की कार्य की है, इसमें खनन कार्य हो रहा है, ये मार्केटिंग का काम हो रहा है, ये इकोनॉमिक, और ये एग्रीकल्चर इज पार्ट ऑफ दैट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर इसके बाद हमारे टूरिज्म ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा टूरिज्म ज्योग्राफी का। ये इंडियन टूरिज्म और नेशनल टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म का पार्ट है। ये हम आप जानते हैं सभी, और एवरीबडी इंटरेस्टेड टू गो हियर एंड देयर टू सी द टूरिज्म स्पॉट, जो प्लेसेस है वो देखना पसंद करते हैं कि कैसे है, ये सब जानते हैं इसको। फिर है सोशल ज्योग्राफी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टुडे। आजकल जो है ये, हाँ, हमारा समाज बहुत विकसित होता जा रहा है, सामाजिक परिवर्तन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, और ये समाज के का विघटन हो रहा है, समाज का पतन हो रहा है, सामाजिक परिवर्तन हो रहा है, इसका अध्ययन बहुत करना जरूरी है। और इसके अध्ययन के क्या आधार हैं, परिवर्तन के क्या आधार हैं, वो देखना बहुत आवश्यक है। तो ये सामाजिक परिवर्तन जो अर्बनाइजेशन होता जा रहा है और विघटन हो रहा है और शहरों का और जो पलायन हो रहा है, ये तमाम बातें इसमें पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को लेकर। कल्चर ज्योग्राफी, सांस्कृतिक पक्ष पूरा भूगोल से निर्मित होता है, क्योंकि जैसा रहन सहन, वेशभूषा, खान पान और कल्चर होगा वो पूरा भूगोल से बेस्ड होगा। त्योहार होंगे, पूजा होगी, वस्त्र होगा, कल्चर होगा, ये सब बेस्ड होगा। अर्बन ज्योग्राफी, urban planning and settlement is totally based on the geography. धरातल कैसा है, धरातल की बनावट कैसी है, उसके ऊपर हमको बिल्डिंग खड़ी करना है, बांध खड़ा करना है, रोडें बनानी है, रेल बनाना है, मार्ग बनाना है, ये सारी प्लानिंग और धरातल के नीचे का भाग और आगे भविष्य तक की संकल्पनाओं को लेकर चलना पड़ता है। इसलिए सबसे आवश्यक है कि अर्बन प्लानिंग के लिए सबसे पहले ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट को कवर करना आवश्यक है। अब इसलिए ये आवश्यक है कि हम ज्योग्राफिकल सारे फैक्टर को जान ले, तब हम अर्बन प्लानिंग करें और शहरी नियोजन करें। इसलिए ये आवश्यक है कि हम जानें इसको, और फिर उसके बाद नगर के विस्तार की योजना बनाई जाए। रूरल ज्योग्राफी, अब देखिए रूरल, आप एग्रीकल्चर को जानते हैं कि हम टोटली हमारी इकोनॉमी बेस्ड है एग्रीकल्चर के ऊपर। रूरल दिन पर दिन कम होता जा रहा है, एरिया भी कम होता जा रहा है, पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर को छोड़ के लोग अर्बन में जा रहे हैं। ये परिवर्तन क्यों हो रहा है, इस परिवर्तन का अध्ययन करना है, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना है, एग्रीकल्चर की समस्याओं का, प्रोडक्टिविटी की, फर्टिलिटी की, सॉइल की, ये तमाम बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया है ज्योग्राफिकल फैक्टर को। सेटलमेंट, समस्या नगरों में आजकल अधिवास की सबसे अधिक है। अधिवास के पैटर्न की, अधिवास कैसे होना चाहिए, कैसे किस दिशा की ओर बढ़ना चाहिए, किस दिशा की ओर बैरियर्स हैं, किस दिशा की ओर इनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे शहर की ही बात करें अगर, तो हमारे शहर में किस ओर अधिवास बनना चाहिए, किस ओर बैरियर्स है, नदी का प्रवाह किस ओर है, नदी के बैरियर्स किधर है, किधर कैंटोनमेंट है, ये जमीन कैंटोनमेंट के अंतर्गत आती है, और यहाँ कैंटोनमेंट बैरियर, यहाँ इसके आगे का अधिवास नहीं बढ़ेगा, इधर नदी के कारण बैरियर्स है, बढ़ेगा उत्तर की ओर बढ़ेगा, आप लोग के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर बढ़ेगा या दक्षिण की ओर बढ़ेगा। ये तमाम बातें हैं, ये अध्ययन का विषय होता है भूगोल।
पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज द सबसे ज्यादा मेन प्रॉब्लम, समस्या दुनिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं। फिर एग्रीकल्चर, इसमें ज्यादा कुछ बताना नहीं है, आप बहुत ज्यादा इसमें विज्ञ हैं और आप इसके विद्वान हैं। इसकी समस्या क्या है, इसके एग्रीकल्चर की समस्या आप पढ़ते हैं, और एग्रीकल्चर के ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की अध्ययन की समस्या हम लोग पढ़ते हैं इसके अंतर्गत, दोनों को कोरिलेट करके बात। मेडिकल ज्योग्राफी, ये आप देख रहे हैं, मेडिकल ज्योग्राफी को अध्ययन आजकल सारा कुछ मैपिंग के माध्यम से बताया जाता है कि कोरोना वायरस की स्थिति क्या है। ये कोरोना वायरस का एक मैप है, ये 11 फरवरी की स्थिति को बता रहा है। ऐसे हर दिन का ये मैप आपको नक्शा इसमें मिल जाएगा नेट पे, और हर दिन का मैप आप पेपर्स में देख सकते हैं कि आज की कोरोना स्थिति क्या है, कोरोना में परिवर्तन कितना हुआ, कितना कोरोना बढ़ा हुआ है, कितने इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, कितनी डेथ हो रही है, इंडिया में कितनी है। ये नक्शे हम बनाते हैं, मतलब ज्योग्राफी वाले बनाते हैं, और जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से इसको बनाते हैं। आप इसमें अगर, ये तो अभी हमने स्कैन किया हुआ है, इसमें आप यहाँ कर्सर रख देंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ का पूरा मैप दे देगा। भारत में आप ये कर्सर रख देंगे तो आप भारत की पूरी लोकेशन, यही मैप, भारत में कितने, कहाँ स्टेट में कितने मर रहे हैं, कितने डेथ हो गई, कितनी रिकवरी हुई, क्या है, ये पूरा कुछ बता देगा किसी भी स्टेट का। ये दिस इज जीआईएस जनरेटेड मैप, ऐसे होता है। तो ये चीजें आपको सारा कुछ आसानी से आप ऑस्ट्रेलिया पर रख देंगे, तो ये दिस इज ज्योग्राफिकल जीआईएस जनरेटेड मैप, ये जीआईएस के माध्यम से होती है। इसका पूरा रोल जीआईएस के ऊपर, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग के माध्यम से, ये सैटेलाइट जनरेटेड मैप होते हैं, इनको ज्योग्राफिकल स्टडी के माध्यम से किया जाता है। रिमोट सेंसिंग, ये रिमोट सेंसिंग भी आप पढ़ते होंगे, जानते होंगे। ये सारे टेक्निक्स जो है ज्योग्राफिकल है, और आजकल तो सभी सब सब्जेक्ट्स में स्टडी की जाती है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे नेटवर्किंग हो, चाहे अर्बन प्लानिंग हो, चाहे रूरल प्लानिंग हो, और चाहे सेटलमेंट की प्लानिंग हो। ये सारे सैटेलाइट के माध्यम से हर स्थान की मैपिंग की जाती है। आप गूगल मैप भी देखते हैं, आप गूगल मैप अध्ययन भी करते हैं, चाहे वो कोस्टल रीजन हो, चाहे वो गंदी बस्तियां हो, और ये लेयरिंग करते हुए और रिमोट सेंसिंग की डिफरेंट मैप्स की इमेजेस बनाती है, और कहाँ उसकी प्लानिंग की जाए, क्या की जाए, ये इस प्रकार से ड्रोन मैपिंग की जाती है आजकल। ये तुरंत हर दिन की आप मैपिंग कर लीजिए कि आज क्या डेवलपमेंट हुआ, कल क्या डेवलपमेंट हुआ। ये ड्रोन मैपिंग आजकल लेटेस्ट टेक्निक हो गई है। रिमोट सेंसिंग की सबसे लेटेस्ट मैपिंग जो है, ये ड्रोन मैपिंग के माध्यम से हम लोग नए से नए, हर दिन का या सुबह का शाम का नक्शा देख लीजिए कि किसकी घर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, किसकी छत बन गई है, किसकी छत के ऊपर लेंटर पड़ गया है, कहाँ क्या हो गया, कहाँ खेत आप जुत गए हैं, कहाँ बो हो लिया गया है। ये रोज आप अपना ड्रोन भेज के आप घर बैठे आप इसके ड्रोन के माध्यम से मैप बना सकते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक, दिस इज वेरी गुड टेक्निक, ये सबके यहाँ अप्लाई होती है, आपके विषय में, हमारे विषय में भी। इससे आप अपना रिजल्ट्स और सारे कुछ ड्रॉ कर सकते हैं परिणाम। ये ट्राइबल ज्योग्राफी बहुत एक लेटेस्ट टेक्निक है, जो कि हमारे जो मूल है, कहना चाहिए हमारे मूल निवासी है, या हमारे देश के बहुत अधिक जनसंख्या, इस पर इनकी जनसंख्या है लगभग 8%, और ये जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा इस पे निर्भर करता है। हेलो, कैन यू सी मी, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझको? दिख रहा है, प्लीज कंटिन्यू। जी सर, जी ओके सर, जी हाँ, जी ओके, हमारे यहाँ लाइट गोल हो गई है, लेकिन बट इन्वर्टर्स नहीं, चल रहा है। चल रहा है जी सर। ओके, तो ये ट्राइबल ज्योग्राफी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट, कि हम अपने जो ये प्राचीनतम आदिवासी जनजातियां हैं, इनके ट्रेडिशन को, हमारे हेरिटेज को हम अपने साथ में रखें और इनको लेके चले, और इनको संरक्षित करें, इनका कल्चर, इनका ट्रेडिशन, ये ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एंथ्रोपोज्योग्राफी ये भी है कि दुनिया की संरक्षित पुरानी जो प्रजातियां हैं, जो उनको, उनके रेसेस को, उनको कैसे कंजर्व करें, एबोरिजिन्स, इनको देखना है और इनको भी संरक्षित करना है। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत ये 3 पार्ट होते हैं हमारे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये आपको अभी आगे हम एनवायरनमेंट में चल के बताएंगे। लिथोस्फीयर के अंतर्गत ये हम धरातल के हिस्से को, ऊपरी हिस्से को, जो धरातल की सरफेस है, नदी, पर्वत और मैदान, ये तमाम रीजन्स को पढ़ते हैं। हाइड्रोस्फीयर के जल के, समुद्र के इलाके को, समुद्र के अंदर के बातों को पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत जो ये इसकी लेयर्स हैं, जो एटमॉस्फेयर की सारी लेयर हैं, जो ये ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर,
थर्मोस्फेयर और ये एग्जोस्फेयर, ये सारी लेयर्स को और आकाश की पूरी दिशाओं को पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत जियोमॉर्फोलॉजी, ये एडवांस जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसको पढ़ते हैं। इनके सारे लैंड फॉर्म्स का कैसे निर्माण हुआ, कैसे कैसे धरातल और धरातल की संरचना हुई, और ये धरातल कैसे कैसे बन रहा है, निरंतर इसकी प्रगति कैसे हो रही है, और ये वेल्कनो कैसे बनता है, और ये हिमालय कैसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इरोजन क्या होता है, और ये पहाड़ों को काट काट कैसे पठार बन गए हैं, ये वैलीज कैसे बनती है, ये अध्ययन हम इसके जियोमॉर्फोलॉजी में एडवांस स्टडीज करते हैं सरफेस की। ओशनोग्राफी, समुद्र का धरातल कैसा है, समुद्र के ऊपर लहरें कैसे उठती हैं, समुद्र के अंतर्गत की अंतर संरचना कैसी दी गई है, और ये समुद्र में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं इनसाइड, और इस समुद्र से हम क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये तमाम बातें ओशनोग्राफी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान, इससे आप अच्छी तरह से विज्ञ है, क्योंकि एग्रीकल्चर में मौसम की दशाओं को देखते हुए आप अपना कृषि कार्य और कृषि की दिशाओं को देखते हुए ये मौसम के अंतर्गत इसको लिया गया आपने, आप जानते हैं इसको भली बात ही। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, ये एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का हिस्सा ही है ये हमारा, अब इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। बायोज्योग्राफी इज आल्सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी है, ये इसके बायोज्योग्राफिकल रीजन है, तो विश्व को अलग अलग क्षेत्रों में हमने डिवाइड कर रखा है, और सारा विश्व अलग अलग प्रकार की प्रजातियों से और इनके मूवमेंट से ये प्रभावित रहता है, और एक दूसरे के मूवमेंट्स ये हमेशा होते आए हैं, ये बताया गया इसमें। रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, ये सारे संसाधनों का इसमें हम अध्ययन करते हैं, और क्या क्या संसाधन है उनके संरक्षण के और उनके एक्सट्रैक्ट जो हम कर चुके हैं या कर रहे हैं, इसमें हम करते हैं इसको। हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान, धरातल में कितना जल हमारे पास है, कैसे कैसे इसको जल का क्रियाएं होती हैं, जल हमारे पास और कैसे आता है, और कैसे इसका जो साइकिल है वो कैसे होता है, और क्या सिस्टम है, ये पूरा ओशन से कैसे जाता है, कहाँ से ऊपर से आता है, फिर साइकिल कैसे बदल बनते हैं, इसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं हम, कैसे इसको चैनलाइज करते हैं, और कहाँ से आता है कहाँ को जाता है, ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ये बताया गया इसके अंदर हम जाते हैं। मीटरोलॉजी एक ये विषय है, ये भी आप जानते हैं, मौसम विज्ञान, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, सर भी इसी विषय के हैं, और श्रीवास्तव साहब भी हैं, ज्यादा इसमें मैं नहीं जानता हूँ, ये थोड़ा सा एक पार्ट है हमारे विषय का, सॉइल साइंस, इसको जमीन के अंतर्गत का धरातल का आप जानते हैं इसको बहुत। अब इन्वायरमेंट की बात करें अगर हम, तो मेरा ये मानना है और ये सोचना है कि इन्वायरमेंट है क्या। बेसिकली इन्वायरमेंट जो है वो भूगोल का ही हिस्सा है, और जो हम भूगोल में पढ़ते पढ़ाते हैं वही चीज इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट कुछ अलग से कोई हिस्सा कुछ अलग से नहीं है, दैट इज पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। जो हमारे सराउंडिंग्स में है, चाहे हमारे सराउंडिंग्स में कहिए आप, अगर हमारे सराउंडिंग्स में कहिए तो जहां हमारी लोकेशन है उसके सराउंडिंग्स, अगर अर्थ के सराउंडिंग्स में कहिए, अर्थ के एनवायरनमेंट में हम तीन भाग आपको मैंने बताए थे। तीन भाग क्या बताए थे? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, तीन भाग बताए थे। तीन भाग हमने बताए थे, यही एनवायरनमेंट है अर्थ का, और इसी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया। अध्ययन का थोड़ा सा तरीका बदल जाता है। ये अध्ययन जो होता है थोड़ा सा साइंटिफिकली अध्ययन किया जाता है, और ज्योग्राफी में उसकी थ्योरीज का अध्ययन किया जाता है, उसके ओरिजिन का अध्ययन किया जाता है, उसके रूट को अध्ययन किया जाता है। इसको अध्ययन हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के एस्पेक्ट में पढ़ते हुए देखते हैं, और उसको अध्ययन हम देखते हैं उसके ओरिजिन को, उसके रूट कॉज को, इसके हिस्ट्री को, और तमाम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देखते हुए अध्ययन करते हैं। अब अर्थ की अगर बात करें तो इसमें आप ये देखिए कि इसके अंतर्गत, इन्वायरमेंट के अंतर्गत जो मैंने अभी बात कही, तो ये हम अर्थ के अंदर की बातें और बाहर की बातें भी इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। एनवायरमेंट भी, दिस इज द पार्ट ऑफ द अर्थ और दिस इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हम इसमें अध्ययन करते हैं। दिस इज अवर एनवायरमेंट इंटरनल। अब एक छोटा सा अर्थ का क्रॉस सेक्शन है कि हम इसके अंतर्गत क्या देखते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे ऊपर की लेयर सॉइल की लेयर है, या ऊपर से अपन चले तो यहाँ पर ऊपर का एटमॉस्फेरिक लेयर जो दिखाई गई है, एटमॉस्फेरिक लेयर दिखाई, एग्जॉस्फेयर,
सबसे ऊपर टॉप की लेयर, इसके ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर, चुंबकीय मंडल, एग्जोस्फेयर। फिर इसके बाद दूसरा है आपका थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बीच में ट्रोपोपॉज होता है, ट्रोपोस्फेयर। ये इसके बाद ये धरातल का हिस्सा जिस पे हम निवास करते हैं, कृषि करते हैं, मकान बनाते हैं, धरातल का ये हिस्सा है। ये एक क्रॉस सेक्शन है पृथ्वी का, एक काटा गया है और उसका एक ये निकाला गया है पोर्शन, उसको डिफाइन किया गया है मैप के माध्यम से। फिर ये क्रस्ट, धरातल की जो पहली लेयर होती है ये क्रस्ट के माध्यम से बताई गई है। फिर ये अपर मेंटल लेयर है, ये जो दूसरी परत होती है जो क्रस्ट के होती है, इसके ऊपर दी गई। फिर ये मेंटल लेयर है, फिर ये एक आउटर लेयर है और ये एक इनर लेयर। इसको स्वेस महोदय ने बताया है निकिल, फेरस और इसको नेफे के नाम से दिया गया है। अब ये देखिए इसका जो धरातल के ऊपर का हिस्सा है, मैंने आपको बताया, इसके जो ऊपर का हिस्से को फिर ये इस प्रकार से, जो एटमॉस्फेयर की अगर हम चर्चा करें, ये जो लोअर लेयर जो अर्थ से सरफेस होते हुए टच होती है, इस जीरो से अगर हम कैलकुलेट करें, ये लगभग 8 किलोमीटर तक फैली हुई है लोअर लेयर। फिर ये अपर लेयर जो है 8 किलोमीटर से 13 किलोमीटर है, ये थोड़ा सा गर्म होती है, ये वार्मिंग लेयर होती है, देखिए। और ये उसके बाद ये सबसे ऊपर की जो लेयर है ये 13 से 19 किलोमीटर लोअर स्ट्रेटोस्फेयर है, ये ठंडी लेयर होती है अपेक्षाकृत। ये एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर निरंतर ऊपर की ओर डाउन जाते हैं तो डाउन होने लगता है, और इस प्रकार से ये टेम्परेचर और ऊपर जाने पे और निरंतर ठंड। ये इसके बाद एक नाइट्रोजन सर्कल है, ऐसे इस प्रकार से आप जानते हैं, ये आपके अध्ययन का विषय है और कृषि में इस प्रकार के अध्ययन को पढ़ाया जाता होगा निश्चित रूप से। क्लाइमेटोलॉजी आपका एक विषय होना चाहिए, होगा ही। ये अध्ययन इस प्रकार के साइकिल्स, वाटर साइकिल, ये और गैसों का चक्र, ये आपको पढ़ाया था। और ये एक जो पूरा कंपोजिशन दिया गया है, जो 1000 किलोमीटर तक का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वायुमंडल का, ये पूरा एक इसमें स्केल दिया गया है कि कहाँ तक क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं। ये पूरा यहाँ पर एक्टिविटीज का चक्र दिया गया कि कहाँ तक हम क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं और कहाँ कहाँ तक पहुंच के वायुमंडल का ये एक दृश्य दिया गया है। यहाँ तक जो है माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के थोड़ा ऊपर तक 10 किलोमीटर तक का दायरे से ऊपर तक यहाँ तक एरोप्लेन्स जाते हैं, और उसके ऊपर तक फिर आगे जाके दूसरी एक्टिविटीज होती हैं। ये एक चक्र दिया गया है। और कुल मिला के यदि कहा जाए तो इस प्रकार का प्राकृतिक दृश्य हमको ये देखता है, ये काल्पनिक दृश्य है और इस दृश्य को बनाया गया है, और ये इसका एक नेचुरल सीन है देखने को, इस प्रकार से देख। लिथोस्फीयर ये एक धरातल का जो ऊपरी दृश्य है, समान तौर पर हम अपनी नेकेड आंखों से देख सकते हैं। जो धरातल के ऊपर का जो दृश्य मैंने पहले ही बताया था कि ये इस प्रकार का जो लिथोस्फीयर में कंस्ट्रक्शन और तमाम जो एक्टिविटीज होती है, और ये मानव निर्मित ही होती हैं, और प्रकृति इसको बनाती है, बिगाड़ती रहती है समय पे। रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग और एग्रीकल्चर और नदी, पर्वत, पहाड़, मैदान, ये सारा कुछ देखते हैं धरातल में। और वन, वनस्पति और ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये तमाम चीजें जो धरातल पे देखी जाती है, लिथोस्फीयर के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोस्फीयर जो जल मंडल है, जल का भाग है, चाहे वो लैंड के ऊपर जल हो या सी कोस्ट हो, या समुद्र के अंदर, या समुद्र की आंतरिक संरचना हो, या समुद्र के अंदर एटॉल्स, या जिसको बोलते हैं द्वीप या लेगून्स हो, उनका अध्ययन या हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल का आपको मालूम है कि जो 29% एरिया है वो लैंड का एरिया है, और रेस्ट ऑफ जो 71% है वो वाटर का, पूरा वाटर बॉडीज है, समुद्र का भाग है। बहुत बड़ा समुद्र का जल का क्षेत्र हमारे पास है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास की मात्रा बहुत है। 71% जल होने के बावजूद भी जल की मात्रा
फिर इकोसिस्टम की बात करें हम इन्वायरमेंट के अंतर्गत, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट जो आप भी पढ़ते होंगे, आप पढ़ाते भी होंगे, आपके एनवायरमेंटल स्टडीज का भी एक वो होगा, डिपार्टमेंट होगा, या आप पढ़ाते होंगे अपने छात्रों को, आपके यहाँ छात्र पढ़ते भी होंगे, आप छात्रों ने पढ़ा भी होगा। इकोसिस्टम इज द पार्ट ऑफ द दिस दिस स्टडी, इन्वायरमेंटल स्टडीज। ये आप जानते हैं अच्छी तरह की व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज साइकिल, या कहना चाहिए एक हमारा चक्र है जो पूरे सिस्टम को, बहुत डिटेल में इसको नहीं जाएंगे, एक डिटेल ये एक कहना चाहिए कि एक जो सारे जीव जंतुओं को मिला के हम इसको जो अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे टॉडपोल्स हो, चाहे ये फ्लाइज हो, चाहे वाटर बीट्स हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो इस हमारे इस धरातल का, वो इस हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है, और वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ा हुआ हो, चाहे वो नुकसानदेह हो, चाहे वो फायदेमंद हो, वो इस सिस्टम का हिस्सा है हमारे लिए। वो कहीं ना कहीं वो नुकसानदेह भी हो सकता है, कहीं ना कहीं उसका फायदा भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो हमारे सिस्टम का हिस्सा है। ऐसे ही ये फूड चेन इसका होता है, इकोसिस्टम की एक फूड चेन है। तो ये फूड चेन को देखिए कि ये घास है, और उसके बाद ये इसका ये इसको खाता है, ये इसका ईट है, और ये इसके बाद फिर इसका ये दूसरा हिस्सा है ईट है, फिर ये इसके बाद तीसरा इसका ये, फिर इसके बाद ये इसका भोजन है, और ये निरंतर एक भोजन का क्रम बनता रहता है, और ये चेन चलती रहती है, एक दूसरे को ये खाते और जीते और खाते और जीते चलता रहता है। ये एक जीवन का चक्र है, और ये जीवन की चलती है इकोसिस्टम। फिर ये एक वर्ल्ड का इकोसिस्टम है जो जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट का मैप बताया है हमने। ये कहाँ कहाँ इसके कितने प्रकार के डेजर्ट्स, वो दिस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट्स हैं, ये विश्व के मैप में हमने इसको बताया है। ये विश्व के पॉलिटिकल मैप की लाइंस ये व्हाइट में दिखाई गई है, लेकिन ये पॉलिटिकल मैप की बाउंड्रीज से कवर नहीं होती है। ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अलावा भी देखिए ये बाहर के एरियाज को ये कवर करती है। ये देखिए ये बाउंड्रीज हट के भी दर्शाई गई है, ग्रीन में दिखाइए, देखिए ये दिया गया है। ये अलग प्रकार के फॉरेस्ट है, टाइगर फॉरेस्ट है, ये तमाम प्रकार के अलग एरियाज के, ये टेम्परेट फॉरेस्ट है, स्टेपीज है, ये ग्रास लैंड भी है, डेजर्ट्स भी है। तीनों प्रकार के फॉरेस्ट को हमने यहाँ इंडेक्स में दिखाया भी गया है, कैसे कैसे फॉरेस्ट है यहाँ पर, और क्या एरियाज में। ये भारत का नक्शा है, भारत में भी तमाम प्रकार के फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट्स हैं। इसपे भी ये प्रकार के दिए गए हैं, 3 4 5 6 प्रकार के दिए गए हैं, और इस पे ये दिस इज द पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम आल्सो यहाँ पर। अब ये इकोसिस्टम आप जानते होंगे, आपको ये बात संभवतः मालूम होगी कि 4 प्रकार के हमारे ये सिस्टम होते हैं। टेरेस्ट्रियल, धरातली, लैंटिक, ये जो लैंटिक जो होते हैं ये पॉन्ड और कुछ अपना जो एक्वेटिक होते हैं, ये पानी के अंतर्गत होते हैं। जो पॉन्ड हुआ या स्ट्रीम हुआ या रिवर जो एरिया होते हैं, उनसे उनके अंतर्गत जो आने वाले ये होते हैं वो इकोसिस्टम होते हैं। एक ये जो दूसरा है ये लोटिक होते हैं, और तीसरा होते हैं आर्टिफिशियल। जो आर्टिफिशियल होते हैं या मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं, इनको बनाया जाता है जो कि हम किसी पर्टिकुलरली स्पेसीज को रिजर्व करने के लिए या उनको संरक्षित करने के लिए इस प्रकार के बनाए जाते हैं इकोसिस्टम। और ये बायोलॉजिकल या कहना चाहिए किसी प्लांट को या किसी किसी जाति को, जानवरों की या प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए ऐसे हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स बहुत चलती हैं, जो कि शेरों को, बारहसिंगा को, राइनोस को बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स और अलग अलग एरिया के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से उसको वो संरक्षित करने के लिए बनाते हैं। ये बायोडाइवर्सिटी के कुछ एग्जांपल्स हमने बताए हैं यहाँ पर देखिए ये शेर हैं, जेबराज हैं, एलिफेंट्स हैं, राइनोज हैं। ये 4 5 6 प्रजातियां एक साथ एक ही रिजर्व्स में संरक्षित की गई हैं, और ये तमाम बायोडाइवर्सिटी के एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, ये समुद्र के अंतर्गत की बायोडाइवर्सिटी है, संरक्षित की गई है। फिर ये मेगा डाइवर्सिटीज के कुछ कंट्रीज हैं जहां पर बहुत सारी प्रजातियां एक साथ एक ही स्थान पर मिलती है। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मैक्सिको, कोलंबिया में, इक्वाडोर में, पेरू में, वेनेजुला में, ब्राजील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर,
इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, पापुआ न्यू, चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया. दीज आर द इम्पोर्टेंट कंट्रीज, या सबसे अधिक जो मेगा डाइवर्सिटीज की कंट्रीज हैं, यहाँ पर डाइवर्सिटीज के इम्पोर्टेंट सेंटर्स हैं. फिर बायोजियोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया, ये जो भारत की अगर हम कहें कि यहाँ पर भी एक ये जो अलग अलग जोन्स बनाए गए हैं, ये 10 जोन्स बायोजियोग्राफिकल जोन्स है भारत के अंतर्गत. ट्रांस हिमालयन जोन्स ऊपर का ये इलाका बनाया गया है, ये हिमालयन जोन्स, डेजर्ट जोन्स और सह्याद्री जोन्स, सॉरी सेमी एराइड जोन्स, वेस्टर्न घाट जोन्स, डेक्कन प्लेटू जोन्स, गैंजेटिक जोन्स, नॉर्थ ईस्ट जोन्स, कोस्टल जोन्स, आइलैंड, जो आइलैंड से यहाँ इनके जोन्स, ये डिफरेंट 10 जोन्स बनाए गए हैं. 10 जोन्स में अलग अलग प्रकार के ये बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं, जो बायोडाइवर्सिटी का हिंदुस्तान के एक एग्जाम्पल है. और ये बायोजियोग्राफी के जो कंजर्वेशन के जो तरीके हैं, कहना चाहिए 4 तरीके मेनली यहाँ पर है. जेनेटिक डाइवर्सिटी, जहां पर जेनेटिक कंजर्वेशन किया जाता है डाइवर्सिटी का. और दूसरा ये यहाँ पर है स्पेसीज डाइवर्सिटी, जहां स्पेसीज का कंजर्वेशन किया जाता है. फिर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसको डिटेल में हम नहीं जा रहे, आप जानते हैं ये कंजर्वेशन के तरीके, आपको मालूम है कि आप कि यहाँ भी होता होगा ये है. और इकोसिस्टम एंड ग्लोबल डाइवर्सिटी. फिर ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा बात करें. ये आप जानते हैं हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, एनर्जी, फॉरेस्ट, लैंड एंड मिनरल्स हैं. इसके थोड़ा सा एग्जांपल हम लेते हैं और आपको इसमें दिखाएंगे. वाटर की सबसे ज्यादा नीड हमारे यहाँ होती है, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ. मैंने आपको भी बताया यहाँ पर कि वाटर हमारे यहाँ बहुत अवेलेबल है. एम्पल ऑफ वाटर इज अवेलेबल. अब बहुत पानी हमारे यहाँ उपलब्ध है. ये जो वाटर अवेलेबल है हमारे यहाँ पर, ये एक वाटर का एक हमने चार्ट दिया है, जो हमारे पास कितना वाटर अवेलेबल है. ये देखिए ओशन का जो प्रेजेंट वाटर है, ये वॉल्यूम में दिया गया पूरा, और ये इतना परसेंटेज दिया गया है यहाँ पर. 96 ओशन में 96 पॉइंट इतने वाटर अवेलेबल है पूरा वाटर में कहा जाए तो. अब इन सब के बाद अब नीचे आते हुए आइए कि हमको कितना प्योर वाटर अवेलेबल है, जो हमारे लिए ड्रिंकिंग वाटर के रूप में अवेलेबल है या फ्रेश वाटर के लिए अवेलेबल है. तो लगभग इनको कहा जाए ग्राउंड वाटर, जो ये पूरा तो अवेलेबल हमारे लिए नहीं है हर समय, जो कि हम पानी को पी सकते हैं, नहीं. अब हमारे लिए फ्रेश वाटर कहाँ अवेलेबल है? लेक्स में. लेक्स के लिए भी पूरे टाइम अवेलेबल नहीं है कि हमको इतना. रिवर्स में अगर कहें कि हाँ ये अवेलेबल है, इसको हम उपयोग कर सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर के रूप में. या लेक्स में पूरे टाइम नहीं मिले. रिवर्स में देखिए तो रिवर्स में कितना परसेंट है, जिसको पढ़ना मुश्किल है, 0.0002%. बायोलॉजिकल वाटर, ये भी दिस इज नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, ये दिस इज 0.001%. यानी इतना पानी होने के बावजूद भी कितना पानी अवेलेबल है, इतना. और ये अंडरग्राउंड वाटर को आप एक्सट्रैक्ट करें तब कहीं जाके आपको निकलेगा, पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रहता, ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, आपको निकालना पड़ता है. तो इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे पास पीने की कितनी कमी है, और ये हम नहीं पी सकते इसको. एनीवे, अब कितना पानी हमको चाहिए होता है, थोड़ा सा इस पे देख लें. इंडिया में, भारत में 1951 में हमको पानी, ये पॉपुलेशन थी इतनी मिलियन, 361 मिलियन पानी की आवश्यकता थी. पर कैपिटा 5177. और ये बढ़ते निरंतर बढ़ते जनसंख्या बढ़ती गई, पानी की पर कैपिटा खपत कम होती गई, और अभी 1000 में ये 25 में इतने हो जाने की संभावना है. और आगे अगर 25 के बाद 50 में कहे तो हमारी जनसंख्या 1640 मिलियन पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, और पानी की हमारा कंजप्शन हो जाएगा 1140 मीट्रिक क्यूबिक फीट. ये पानी हमारा इतना कम हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 20% से भी कम पानी हमको जो आज मिल रहा है, 1950 मिल रहा था, उससे ये हो जाएगा. अब वाटर
डिमांड इन जो हमारे यहाँ कितनी पानी की आवश्यकता है, ये डोमेस्टिक यूज के लिए 2000 में ये पानी की आवश्यकता इतनी थी 30 लाख मेट्रिक किलोमीटर। अब यहाँ 25 में इतनी हो गई 73। ये टोटल जो है ये हमारे यहाँ पानी की आवश्यकता कितनी थी 2000 में 605। अब यहाँ पर बढ़ के 803 हो गई और 25 में कितनी हो जाएगी टोटल ये 1093। इतने पानी की प्रतिपूर्ति कहाँ से हो पाएगी? और दिन पर दिन पानी हमारा कम होता जा रहा है और पानी की खपत कम होती जा रही है, वाटर लेवल फॉल होता जा रहा है। अब एनर्जी की थोड़ी सी बात कर ले। एनर्जी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी हमारे पास जो है वो हमारे सोर्सेस है हमारे पास। एनर्जी के अंदर गैस आती है, कोल, नेचुरल, न्यूक्लियर और ऑयल एनर्जी। अब इसमें से 45% कोल, 23% नेचुरल गैस, 20% न्यूक्लियर, हाइड्रो पावर, 7% और 5% अदर। ये राउंड फिगर में कर दिया गया, हो सकता है ये 0.5 में या पॉइंट्स में हो। ये गैस का सॉरी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का स्रोत और हमारे यहाँ इनका ये यूज है। अब ये भी हमारे यहाँ आप जानते हैं कि ये इसका लिमिटेड हमारे पास स्टॉक है और ये एक दिन हमारे यहाँ खत्म हो जाएगा। इसका यदि प्रॉपर यूज नहीं किया गया या इसकी बचत नहीं की गई या इसका एक्सट्रैक्शन कम नहीं किया गया तो नेचुरली हमारे यहाँ और आगे भविष्य में प्रॉब्लम खड़ी। फॉरेस्ट, द सिमिलर थिंग इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट हमारे यहाँ 2010 में ये बताए गए थे 35% फॉरेस्ट जो है वो ब्राजील में है, या इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। 24% ये है अदर्स में है और ये रशिया में, ये इस प्रकार से दिया गया है। ये टॉप जो कंट्रीज है वहाँ कितना कितना इसका हमारा हिंदुस्तान का नंबर बहुत पीछे है कहीं। तो ये रिसोर्सेस भी आगे चल के अगर इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और निरंतर फॉरेस्ट की कमी हो जाएगी, जिसके गंभीर परिणाम दूसरे भी होते हैं। वर्षा में होते हैं, तापमान में होते हैं, सॉइल में होते हैं और तमाम नेचुरल डिजास्टर्स में होते हैं। देखते हैं। लैंड की मैंने आपको से बात की थी। इतना लैंड हमारे पास अवेलेबल है 148.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, यानी कि 29% ऑफ द अर्थ इज लैंड एरिया। मैंने आपको बताया था 71% वाटर है और 29% जो है वो लैंड है। और इस लैंड में हमको हमारी पृथ्वी के हिस्से मतलब हमारी जनसंख्या और तमाम हम लोग निवास करते हैं। यहीं पर वेस्टलैंड भी है, इसमें 29 में एग्रीकल्चर लैंड भी है, इसमें हमारे तमाम वाटर बॉडीज भी हैं, ग्लेशियर्स भी हैं। ये सारे 29 में ही हमको सारा कुछ देखना है। फिर मिनरल्स की बात करें। मिनरल हमारे जो मेन रिसोर्सेस हैं और ये मिनरल्स है। मिनरल्स हमको कहाँ कहाँ क्या क्या मिलते हैं हमने इसे बताने का प्रयास किया। डिटेल इसमें हम बहुत नहीं जाएंगे, लेकिन मिनरल्स हमारे जो इकोनॉमी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था है या हमारी इंडस्ट्रियल व्यवस्था है, उसकी ब्लड वेसल्स है, हमारे रक्त संचार, हमारी आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा है। इसके अंतर्गत हिंदुस्तान की अगर बात कहें तो जो मेन मिनरल्स हैं जो उसका प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। और इसी प्रकार अगर अन्य प्रदेशों की बात करें तो कर्नाटका है और ये तमाम मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड और उड़ीसा, चंडीगढ़ और तमाम महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल and others. These are the states producing maximum mines and minerals production. फिर ये एनवायरमेंटल इश्यूज की कुछ मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये बहुत वास्ट विषय है, इतना डिटेल्ड सब्जेक्ट है कि इसके अंतर्गत हम अगर हम महीनों चर्चा करें तो खत्म नहीं होगा। तो मेन इश्यूज आर एनवायरमेंट आर देयर। पॉल्यूशन बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। वास्ट सब्जेक्ट है कि एक एक पॉइंट ले लेते, एक एक पॉइंट के सब हेडिंग्स एक एक पेपर होते हैं। एयर, वाटर, नॉइस, सॉइल, मैरिन, अभी आगे चर्चा करते हैं, थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में चर्चा करेंगे। डिजास्टर्स की बात करें तो डिजास्टर्स, पॉल्यूशन तो बहुत चर्चा हो, डिजास्टर आजकल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ डिजास्टर्स हो रहे हैं।
डिजास्टर्स क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? डिजास्टर्स इसलिए हो रहे हैं कि एक प्रकृति का नियम है संतुलन की अवस्था बनाना, नेचर का नियम है, नेचर का नियम है, हर चीज का नियम है। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इंसान को भी संतुलन में रहना चाहिए। हमारा शरीर भी तीन प्रकार से हमारे शरीर की संरचना है जो प्रकृति का नियम है। हम अभी आप में से जो योगा करते हैं वो जानते हैं इस बात के लिए कि हमारे शरीर में तीन प्रकार की नाड़ियां हैं। तीन प्रकार की नाड़ियां हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। बाईं तरफ की जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी है, दाहिनी तरफ की जो नाड़ी है वो पिंगला नाड़ी है, और मध्य मार्ग जो सुषुम्ना नाड़ी है वो मध्य मार्ग जो उसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, पीछे से लेकर ऊपर तक, यहां से लेकर पीछे तक जाती है। संतुलन की अवस्था चाहिए। अगर ये दाहिना पक्ष हमारा ज्यादा लीवर साइड का गर्म होगा या ज्यादा होगा तो परेशानी होगी, लेफ्ट का होगा तो परेशानी होगी। हम बैलेंस की अवस्था में रहना चाहते हैं, संतुलन की अवस्था में रहना चाहते हैं। योग का यही सिद्धांत है, प्रकृति का यही सिद्धांत है। हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हम प्रकृति का हिस्सा है। हमेशा संतुलन क्या हो, प्रकृति क्या करती है कि हमेशा संतुलन रहती है। प्रकृति का नियम है संतुलन स्थापित करना, और प्रकृति जो ये संतुलन की अवस्था है, मुझे कहना तो ना चाहिए, दुनिया ने कहा है, और वेदों में, शास्त्रों से लेकर आज तक के भौगोलिक विचारधाराओं के, भौगोलिक चिंतन के विद्वानों ने कहा है कि संतुलन की अवस्था में प्रकृति हमेशा आती है। और ये डिजास्टर्स होते हैं ये संतुलन स्थापित करते हैं। संतुलन क्या स्थापित करते हैं कि जो हमने असंतुलन किया है पृथ्वी के साथ में, वो संतुलन स्वयं स्थापित कर लेती है पृथ्वी। संतुलन स्थापित करने के लिए पृथ्वी अर्थक्वेक, सुनामीज, वोल्केनोज एक्टिविटीज, ये जो हमने असंतुलन बनाया है वो पृथ्वी अपने आप, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया, दोहन किया पृथ्वी के साथ, वो तमाम ये एक्टिविटीज जो हमने अभी अब आगे हम बताने जा रहे हैं, ये स्वयं अपने आप को बनाकर, और इसको पृथ्वी स्वयं संतुलन स्थापित कर लेती है और अपने आप को बैलेंस कर लेती है या रिपेयर कर लेती है। जैसे हमारी बॉडी में कोई घाव होता है और हमारी बॉडी स्वयं उसको घाव को भर लेती है और वो चोट ठीक हो जाती है, वैसे पृथ्वी भी यही करती है। पृथ्वी भी अपनी जागृत और जीवित अवस्था में रहती है और वो संतुलन स्थापित कर लेती है। संतुलन स्थापित करके अपने आप को रिपेयर कर लेती है, रिपेयर करने का प्रयास करती है। ये एक प्राकृतिक क्रम है। इसको हम डिजास्टर के माध्यम से पढ़ते हैं तो इसमें जियोफिजिकल जो है, इसके अंतर्गत अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटीज। हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, अवलांचेस एंड फ्लड्स। क्लाइमेटोलॉजिकल जो डिजास्टर्स होते हैं उसके अंतर्गत एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, वाइल्ड लाइफ। इसके बाद मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स होते हैं, साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, वेव्स एंड सर्ज। ये इसके बाद बायोलॉजिकल जो डिजास्टर्स होते हैं, डिजीजेस, पैंडेमिक, एपिडेमिक, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। ये पैंडेमिक अभी हम झेल रहे हैं, दैट इज आल्सो बायोलॉजिकल डिजास्टर। फिर इसके बाद और जो समस्याएं हैं वो ग्लोबल वार्मिंग, जो वर्ल्ड लेवल की इश्यूज है, अर्बनाइजेशन, एनर्जी, वाटर, राइजिंग ऑफ सी लेवल, डिफॉरेस्टेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ड्रॉट एंड फ्लड्स, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। ये दीज आर द इशू ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया की समस्याएं हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज के नाम से जानी जाती है, और इस पे हर विश्व की जो एजेंसीज हैं या विश्व की सरकारें हैं, विश्व यूएनओ है, वो सारे लोग लड़ रहे हैं। थोड़ा सा एक ग्लिम्पसेस लेते हैं। ये वर्ल्ड की पॉल्यूशन की समस्याएं देखिए, ये वाटर पॉल्यूशन देखिए, विश्व की समस्या। ये बच्चे कैसे गंदे स्थान पर खेल रहे हैं, ये उनका एक क्रम बन गया है, अब इसी में आदत पड़ गई है। नाली से देखिए कैसे दूरों से पानी लाया जाता है और नदियों में ऐसे उड़ाया जाता है। हमारे यहाँ जबलपुर में आप देखेंगे, नर्मदा में भी ऐसा ही है। मुझे दुख होता है देख के, मंदिरों से, धार्मिक स्थानों से और अन्य स्थानों से इस प्रकार की नालियां अंदर ही अंदर बहा दी जाती है नर्मदा में, और किसी को मालूम नहीं चलता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, आप भी देख सकते हैं कालीघाट और तमाम स्थानों में। लेकिन मुझे दुख होता है, कर कुछ सकते नहीं, दुख प्रकट कर सकते। ये देखिए ये कैसा ढेर पड़े हुए हैं। ये देखिए ये इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं। क्या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं है हमारे? मध्य प्रदेश में है, प्रत्येक स्टेट में है। भारत का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। सब कुछ देखते हुए भी आंख मूंद ली जाती है। आप भी आंख मूंद लेंगे, हम भी आंख मूंद लेंगे, ये कहानी कह के चुप हो जाएंगे। मैरीन, ये देखिए
ये अभी पेंडेमिक के अंतर्गत देखिए, ये मास्क लगाना अनिवार्य है और इस समुद्रों में ये फेंके जा रहे हैं क्या मास्क। ये कछुआ देखिए, क्या ये कछुआ का जीवन मुश्किल नहीं है? ये जीव नहीं है? ये देखिए, ये नीचे वाला चित्र देखिए, इसमें देखिए ये केकड़ा है, देखिए ये बॉटल के अंदर है, ये एक पैड पड़ा हुआ है, ये देखिए सैनिटरी पैड है, ये कछुआ, ये केकड़ा इसके अंदर बॉटल के अंदर, इज लिविंग इन बॉटल। ये फोटो देखिए, पोल्यूटेड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक। ये देखिए एक फिश है, फिश ने कितना क्या खा लिया था, वो मर गई फिश। सॉइल पोल्यूशन, ये सॉइल पोल्यूशन के आप देखिए, ये एक दृश्य है, आप सॉइल के बारे में पढ़ते होंगे, डॉक्टर श्रीवास्तव भी इन्हीं विषय के हैं, तो ये तो इसके मर्मज्ञ है, ये अच्छे से आपको पढ़ाते भी होंगे, जानते भी होंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कैसे जमीन खराब हो रही है हमारे पास। ये पोल्यूशन वेस्ट, अर्बन सिटी पोल्यूशन का वेस्टेज डंपिंग जो सिस्टम है नगर निगम का या कहीं का भी, वो ले आके साइड के बाहर फेंक देना, बस कचरा उठा के फेंक दिया, ये पूरी जमीन खराब होती है, इसका कोई उपचार नहीं, बस पड़ा है सड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा, जमीन खराब होगी, कीटाणु फैलेंगे, जमीन भी खराब होगी और रोग भी फैलाएगा। फिर उसके बाद डिजास्टर्स की बात करी मैंने की थी, तो ये देखिए डिजास्टर्स देखिए, जो अभी आपने देखा वो पानी कैसे भरता है आसपास के इलाकों में फ्लड्स के कारण। ये देखिए, ये तूफान आते हैं जो थंडर्स आते हैं, ये देखिए थंडर का एक रूप है, पूरा तारे वारे तक उड़ जाती, तेज भयंकर तूफान होते हैं कि तारे आरे और झोपड़पट्टी तक उड़ा ले जाते हैं। ये आग लगना, कैसे आग लगती है देखिए, ये जंगल की आग, शहर की आग, कैसे कैसे ये भूकंप और ये सब के कारण आग लगती है। ये जंगल की आग देखिए, ये भूकंप का एक सीन देखिए, ये ज्वालामुखी है, सॉरी ये ज्वालामुखियों का निकला है। ये सड़क कैसे डैमेज हो गई, लैंडस्लाइड है। ग्लोबल वार्मिंग इज द बर्निंग प्रॉब्लम। कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाय डे, निरंतर गर्मी कैसे बढ़ रही है, पिछले 40 साल में हमने भी देखा। पहले हमारे घरों में सिर्फ एक पंखा हुआ करता था, या तो टेबल फैन या सीलिंग फैन। हर हर घर में 10-12 पंखे होते हैं, हर छत में ऊपर 2 पंखे लटके होते हैं, हर कमरे में एसी होता है, तब भी ठंडक नहीं मिलती है और गर्मी रहती है। निरंतर गर्मी बढ़ती जा रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, आज 52 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, 42 डिग्री अभी चल रहा है। जब पीक गर्मी होती है तब 52 से लेकर 52 तक पहुंच जाता है हिंदुस्तान में और तमाम जगहों पर। ये देखिए टेम्परेचर बढ़ाने, निरंतर टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ये मशीन काम कर रही है, ये फैक्ट्रीज काम। परिणाम क्या होता है, ये जो ग्लेशियर्स थे, ग्लोबल वार्मिंग होती है, पूरा पृथ्वी गर्म होती है, ये जो ग्लेशियर्स थे ताजे पानी के, ये सब पिघलना शुरू होते हैं, पिघल के ऐसे बचते हैं, ये पानी जम गया। अब इतना भी नहीं रहता है कि ये पोलर बियर्स की बैठने की जगह मिले, ये पोलर बियर्स को बैठने की जगह नहीं मिलती है कि कहाँ बैठे, ये तो छोटे छोटे से आइसबर्ग्स ढूंढ के बैठना का जगह ढूंढते हैं, इनकी जान भी खतरे में, ये कहाँ जाए, पानी में डूब जाएंगी, इनकी लाइफ पानी में नहीं जी पाएंगे, ये एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का एक एग्जांपल देखिए आपके सामने, ये ऐसी मशीनें लगा लगा के पूरे लकड़ियां काटी जा रही हैं, ये जंगल काटे जा रहे हैं, ये पहाड़ी को नेकेट किया जा रहा है, ये पहाड़ी काट काट के देखिए, ये फॉरेस्ट लगे हुए हैं, ये पहाड़ी काट के नेकेट की जा रही है और पहाड़ी दिन पर दिन खत्म हो जा रही है। ये एक एग्जाम्पल देखिए कि ऑक्सीजन की अभी कितनी कमी हो रही है पूरे भारत में, कि भारत भर में ऑक्सीजन यहाँ से वहां मारा जा रही है, और बड़े बड़े वो भेजे जा रहे हैं टैंकर्स और बैरल्स, और वो गायब हो जा रहे हैं, चोरी हो जा रहे हैं, टैंकर से टैंकर्स गायब हो जा रहे हैं, छीन लिए जा रहे हैं, लूट लिए जा रहे हैं, मार लिए। कैसी ऑक्सीजन की मारामारी हो रही, क्यों हो रही है ये, कि इसीलिए फॉरेस्ट की आवश्यकता पड़ रही है हमको, ये फॉरेस्ट काट लिए जा रहे हैं। एक छोटा सा एक वीडियो देखिए आप, 1-2 मिनट का वीडियो है, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वीडियो कैसे आपको ऑक्सीजन ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, ये कार्बन ले रहा है, CO2 अंदर, O2 बाहर, CO2 अंदर, O2 बाहर।
एकमात्र पेड़ था, उसको भी काट लिया गया। सारे पेड़ पहले ही कट गए थे। अब आपको जरूरत पड़ेगी कि हमेशा एक सिलेंडर लेके चलिए आप, अगर जिंदा रहना है तो। दिस इज द स्टोरी। ये है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो यही होगा कि हमको सिलेंडर, पानी की बोतल लेके चलना पड़ रहा है, बिस्लरी की बोतल लेके हम चल रहे हैं। अब पानी की बोतल की जगह में अब एक सिलेंडर भी साथ में लेके चलना पड़ेगा आपको और हमको, सभी को, यात्रा करने के लिए। राइजिंग सी लेवल, अब समुद्र का अब ये सब होने के कारण समुद्र का सतह बढ़ेगा। समुद्र के सतह का लेवल हर साल ये ऐसे ऐसे बढ़ रहा, देखिए मिलीमीटर्स में। और एक समय आएगा कि 1930 में समुद्र का लेवल यहां तक पहुंच जाएगा, सॉरी 2030 में, और 2050 में समुद्र का लेवल यहां पहुंच जाएगा। परिणाम क्या होगा? परिणाम हुआ है, ये देखिए परिणाम आपके सामने, ये देखिए अभी जो 2005 और 2010 और 2015 तक का ये सी लेवल है, राइज होने के परिणाम स्वरूप ये हुआ है। अब समुद्र के लेवल को बढ़ने के लिए ये सीमेंट की बोरियां और रेत की बोरियां लगा के रोका जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये रेज अप हो जाता है समुद्र का लेवल, और वो उससे ऊपर, उससे ज्यादा रोकने की स्पीड से ज्यादा समुद्र का लेवल बढ़ता जाता है। परिणाम स्वरूप देखिए कितनी बिल्डिंग्स, कितने बड़े बड़े अर्बन स्ट्रक्चर्स डूबे हुए हैं, देखिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ यू एंजॉय विद द नेचर, और प्रकृति के साथ रहिए और प्रकृति को एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवरब्लोइंग सर, हम लोग तो आकाश पाताल धरती पता नहीं कहाँ कहाँ आपने घुमा डाला है। 4 वाय को हम लोग देख रहे हैं कि हम जबलपुर में है कि कहाँ कहाँ घूम आए। बहुत बहुत अद्भुत सर, बहुत बढ़िया सारे चित्र आपने खींच दिए, बहुत सुंदर। और हमें लगा कि हमारा अर्थ डे का आज सार्थक हुआ। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर नेमा सर, जो इस प्रोजेक्ट के पीआई भी हैं, और साथ ही बहुत सारी बातें जिस तरफ आप ले जा रहे थे, समष्टि व्यष्टि योग वगैरह, उसके भी सर बहुत अच्छे जानकार हैं। तो मैं सर से आग्रह करूंगा, प्रोफेसर नेमा सर से, कि आज के इस अवसर का हमारा अध्यक्षीय उद्बोधन है। आदरणीय डीन सर। थैंक यू डॉक्टर श्रीवास्तव। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर लोकेश श्रीवास्तव जी, अद्भुत अद्भुत आपका स्पीच थी, अद्भुत आपका व्याख्यान था। डॉक्टर M.K. अवस्थी हमारे प्रोजेक्ट के ट्रेनिंग हेड, और डॉक्टर आर्यन श्रीवास्तव, डॉक्टर आलोक वाजपेयी, हमारे और विद्यमान प्रोफेसर्स, डियर स्टूडेंट्स। हमारे जो स्टूडेंट थे उसमें भी पीजी और यूजी दोनों के स्टूडेंट सम्मिलित हैं। और NATP का, NAHEP का जो प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, रिमोट सेंसिंग GIS पे ही है ये। और उसमें हमें लगता है कि आज जो व्याख्यान आपने दिया है सर, वो एक आधार स्तंभ है जियोग्राफी। एक्चुअली हम लोग GIS पे काम करते हैं, तो GIS का आधार ही जियोग्राफी है, और जियोग्राफी के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर जियोग्राफी अलग कर दें तो आधार अलग हो जाएगा हमारा। और इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपका संभाषण आज हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं सर कि अर्थ डे 21 का जो मुख्य थीम थी वो नेचुरल रिसोर्स पे ही थी। नेचुरल रिसोर्स का के द्वारा कैसे अपने एनवायरनमेंट को सेव करें, इमर्जिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव थिंकिंग के द्वारा हम कैसे रिस्टोर करें अर्थ को। तो उसमें जो आपका व्याख्यान हुआ है वो रिस्टोरिंग अर्थ। एक तो पहली बात हम ये बताएं कि इतना इतना बृहत होराइजन कि अर्थ तक हम पहुंच जाएं। हम लोग कृषि में काम करने वाले, और एक वाक्य को हम अपना ब्रह्म वाक्य मानते हैं, प्राणी नाम प्राणदा कृषि। प्राणियों को प्राण देने वाली ऐसी हमारी कृषि है, पर उस कृषि को भी प्राण देने वाली हमारी भूमि है, अर्थ है, और इस अर्थ का एनवायरनमेंट है। ये दोनों ही विषय हमारे लिए बड़े सापेक्ष थे, और हमारे सारी चीजों की जननी तो अर्थ ही है। हम समझते हैं कि 51 साल बाद भी अगर हम आज जो इश्यूज उठा रहे हैं वो इश्यूज आज के इश्यू नहीं हैं। अगर हम इनको देखें कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, और जिस प्रकार से आपने बृहत्तर एटमॉस्फेयर में उसको पूरा कवर किया है,
चाहे वो भूगर्भ हो, और चाहे वो वायुमंडल हो, और चाहे हमारा भूमंडल हो, इस पूरे मंडल को आपने कवर करते हुए इतना इतना बताया है कि हम समझते हैं कि वो हमें बार बार वो चीज याद आ रही थी। हमारे डॉक्टर त्यागी थे, वो कहा करते थे, when when you know more you know that I don't know anything। तो इस तरह से हम जब इसके इतनी सारी ब्रांचेस, इतना सारा उसका बृहत, उसका आकार, उसका प्रसार, उसका प्रचार, तो समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जब हम दूसरी चीजें समझते हैं तो लगता है कि कुछ नहीं जानते हैं। इतना बृहत्तर विज्ञान है ये कि इसको समझना और उसमें कुछ चेष्टाएं करना, उसको इम्प्रूव करने के लिए ये इट टेक्स लॉट ऑफ नॉलेज। हम समझते हैं जैसे ही ये कोरोना का पीरियड खोलेगा, पेंडेमिक खोलेगा, साक्षात रूप से हम आपसे रूबरू होना चाहेंगे, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारी फैकल्टीज के लिए। एक चीज हम जरूर कहेंगे कि ये विषय कोई नया नहीं है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो और टेम्परेचर का चेंज हो, वर्षा का, तापमान का चेंज हो, ये सब देन तो हमारी ही है। हम जो पृथ्वी पर कर रहे हैं उसी का देन है ये। और इस तरह का एक आख्यान रामचरितमानस का है, जब पृथ्वी ये सोचती है, पृथ्वी गाय का रूप धर करके देवताओं के पास जाती है और ये कहती है कि भगवान, हमारे ऊपर जो पानी और पर्वत हैं उनका भार तो हम सह जाते हैं, लेकिन पाप भूमि से भारी। जब कोई भारी वस्तु हमारे ऊपर आ जाती है, हमारे वजन के ज्यादा, तभी हमें भार लगता है। हम चींटे और पतंगों का भार सहन कर जाते हैं, लेकिन जब कोई पाप करता है, कोई बुरा कर्म करता है, उसका भार हमको सहन नहीं होता। और इसको देखते हुए हम अनेक घटनाएं देखने मिलती है जहां व्यक्ति खुद कोलैप्स हो जाता है। ऐसी भूमि भी बोल रही है कि पाप बहुत बढ़ गया है प्रभु, धेनु रूप धरी हृदय विचारी, और गई जहां जहे सब सुरझारी। ऐसी पृथ्वी जब देवताओं के पास जाती है, विनय करती है और ब्रह्म से प्रार्थना करती है कि भगवान ये पाप का हरण करो। ये व्यक्ति जो है अनेक प्रकार से पाप कर रहे हैं, दूसरे की नारियों को हर ले जाते हैं, काम क्रोध मोह लोभ बहुतायत में हो गया है। और ये यही कारण है हमारे क्लाइमेट चेंज के भी, चाहे वो वनों का दोहन हो, चाहे जल का दोहन हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम कहाँ ले जा रहे हैं अपने आप को, और करे जा रहे हैं। तो वो सब सुन के एक आकाशवाणी हुई, और हम समझते हैं आज लोकेश श्रीवास्तव जी ने भी एक आकाशवाणी कर दी है, सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह, और बोले हम अवतार लेंगे। ब्रह्म बोले हम अवतार लेंगे और भूमि का पाप जो है वो भार हरण करेंगे। तो आज जो हमारे ज्ञान में वृद्धि हुई है, हम जानते हैं कि ये पृथ्वी हमारी माता है, मातृ देवो भव, और इस माता का ख्याल रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पिछले एक स्पीच में डॉक्टर अवधेश नेमा जी, हमारे इंजीनियर अवधेश नेमा जी ने एक बहुत बढ़िया व्याख्यान दिया था। इस माता को अगर जीवित रखना है, इस माता को स्वस्थ रखना है, तो क्या क्या करना होगा। और आज हमें फिर से वो इश्यूज सुनने में आए, तो हम डॉक्टर श्रीवास्तव जी के बहुत बहुत आभारी हैं। खेती के संबंध में हो, चाहे हमारे जीने के संबंध में हो, आपका नॉलेज बृहत्तर है। हमारे आदिवास का हो, सेटलमेंट का हो, और आपने अनेक आयामों को छुआ है। इन सारे आयामों को देखते हुए यदि हम ये कहें कि रियली I know more and I know that I don't know anything now. So we have to research, we have to search, and चाहे बायोडाइवर्सिटी हो। हाँ, एक पॉइंट जरूर मेरे मन में आया कि इतना जब बृहत्तर ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का नॉलेज हमको होगा, आप जैसे विज्ञानविद हमारे मौजूद होंगे बीच में, तो हम जो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, अगर तापमान बदल रहा है या कोई वैरायटी हमारी ठीक नहीं आ रही है, उपज कम हो रही है, तो ऐसे ही एनवायरनमेंट कहीं ज्योग्राफिकल किसी और कोऑर्डिनेट में हो रहे होंगे, और वहां पे कैसे सस्टेन किया प्रकृति ने अपने आप को, हम उनसे सीख लेकर के अपने यहाँ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें वो बदलाव लाए जा सकते हैं, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ें। तो ये पॉइंट हमें जरूर मिला आपकी स्पीच से, और हम चाहेंगे इस पर जरूर कोई हम रिसर्च भी पॉइंट करें इस पे, कि हम अपने क्लाइमेट चेंज को देखते हुए
जो चेंज्ड क्लाइमेट है उसको अडॉप्ट करें और उस पर जहां भी ऐसी कोई स्थिति हो वहां कैसे सस्टेन हो रहे हैं उसको हम निकालें और इस तरह की चीजों को हम और प्रचार प्रसार करें तो शायद हमें जो डरावना और भयावना दृश्य दिख रहा है उसको हम थोड़ी सी निजात पा पाएंगे। लेकिन मूल रूप से तो जो आपने कहा कि संतुलन जरूरी है, और जब तक हमारे दिमागों में संतुलन नहीं होगा, जब तक हमारे व्यवहार में संतुलन नहीं होगा, तो पृथ्वी और प्रकृति अपना संतुलन तो बिगाड़ देगी और वो अपनी तरह से ठीक करेगी जैसा अभी चल रहा है पेंडेमिक में। और इसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हम पुनः एक बार आपका बहुत आभार करते हैं लोकेश जी, और आपसे जरूर मिलेंगे। आपसे मिलकर प्रसन्नता होगी। हमें लगा कि बोलते तो कई लोग हैं सर, लेकिन दिल से बोलना अपनी जगह होता है, अपने सब्जेक्ट के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर बोलना अपनी जगह होता है। आपने दिल से बोला है, आपने अपने की पीड़ा भी रखी है कि क्या होगा कैसे होगा, बार बार मैंने देखा है वो। तो हम मिलकर के कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से ये कोई हमें अच्छी चीज निकाल के देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका आभार और थैंक्स टू डॉक्टर आर एन श्रीवास्तव who arranged this lecture in a very short time, and thanks to Dr. M.K. Awasthi. Thank you very much, sir. थैंक यू Thank you. सर। Thank you very much, sir. Thank you all. ये हमारे आदरणीय डीन साहब की ही प्रेरणा है। और सबसे पहले तो मैं एक जो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स जिसको कहा जाता है कि जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन है और जो सर का नेतृत्व है वो हम लोगों के लिए बहुत काम का रहता है। और इसलिए सारी व्यवस्था को, सारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, उसको हमको काम करने की अनुमति देने के लिए सबसे पहले मैं सर का आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे माननीय कुलपति जी जिनके संरक्षण और जिनके बहुत अथक प्रयासों से हमको यह प्रोजेक्ट प्राप्त हुआ है अखिल भारतीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव बेसिस पर, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अभी चूंकि समय ऐसा चल रहा है इसलिए हम लोगों ने उनको इसमें नहीं जोड़ा और उनका संरक्षण मार्गदर्शन हमको सदैव रहता है। तो माननीय कुलपति जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे इस प्रोजेक्ट के पीआई और हमारे जो है प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर आर के नेमा सर का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ मैं सदन को ये बता देना चाहता हूँ कि आदरणीय लोकेश जी का सानिध्य हमको इसलिए प्राप्त हो पाया कि इसकी प्रेरणा भी आदरणीय नेमा साहब की है। जब मैंने उनसे कहा कि सर अर्थ डे आ रहा है और अपने को अर्थ डे मनाना है, तो उन्होंने कहा भाई अर्थ डे की आपको अगर बात करना है तो कोई ज्योग्राफी भूगोल के जानकार व्यक्ति को बुलाओ। अपन बोले अर्थ का थोड़ा सा टुकड़ा पकड़ते हैं और अपन अपने आप को जानकार समझते हैं, लेकिन यदि आपको अर्थ डे मनाना है तो फिर किन्हीं भूगोल के विद्वान को आप ढूंढो। और मैं ढूंढता रहा और फिर हमारे कुछ विधि मित्रों की सहायता से श्रीमान मनीष पांडे जी, प्रोफेसर राधिका प्रसाद मिश्र जी, मैं इन्हें भी साधुवाद कहना चाहूंगा। इनके माध्यम से बहुत बाजू में खड़े हैं लोकेश जी हमारे, लेकिन ऐसे वाया मीडिया में उन तक पहुंचा। तो इन सुधी मित्रों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और श्रीमान लोकेश जी का तो बहुत बहुत आभार साधुवाद है ही। यानी व्यष्टि से समष्टि तक और पुनः समष्टि से व्यष्टि तक आकर के ये जितनी यात्रा आपने हम लोगों की करा दी, जितने आयाम आपने की, मैं तो मतलब ऐसा घूमता घूमते ही रह रहा हूँ अभी तक के। तो सर आपका बहुत आभार। और जैसा हमारे डी साहब ने कहा है कि हम लोग किन्हीं किन्हीं आयामों पर साथ में मिलकर काम करेंगे, क्योंकि जितनी सारी बातें आप कर रहे थे ऐसा लग रहा था कि सब हमारे आजू बाजू की बातें हैं। तो और रिमोट सेंसिंग जीआईएस जैसा इस प्रोजेक्ट का मैंडेट है, तो इस पर हम और आप साथ में चलेंगे। सर और मैं एक बात आपको बता देना चाहूंगा जी कि सर। एक हम अभी जीआईएस का एक वो कर रहे हैं, 14 दिन का इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं। इंटरनेशनल अफ्रीका के एक यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेट करके हमारा डिपार्टमेंट कर रहा है। तो उसमें जी आपके छात्र और या अन्य लोग भी जुड़ना चाहे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी और हमारी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल तो सर। उसमें जो छात्र जुड़ना चाहे या रिसर्च स्कॉलर या जी फैकल्टी जी डेवलपमेंट के लिए जो भी जुड़ना चाहे तो उसमें भाग ले सकते जुड़ेंगे हैं। सर। मैं हम आपको लोग उसमें इनवाइट करूंगा सर, सारे लोग को। तो हमारा नाहिक ग्रुप का जो है आपसे जुड़ेगा। ये ऑनलाइन रहेगा सर? हाँ, ये ऑनलाइन रहेगा। 14 डेज का 2 वीक्स का प्रोग्राम रहेगा। बिल्कुल फैकल्टी बिल्कुल। डेवलपमेंट प्रोग्राम रहेगा। हमारी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल प्रोग्राम रहेगा सर। कब ये कब है शेड्यूल में ये? सर ये नेक्स्ट मंथ में रहेगा और 14 दिन का प्रोग्राम रहेगा, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन क्वांटम जीआईएस। गुड गुड। विल जस्ट पार्टिसिपेट इन दैट। हाँ सर, कोई भी भाग लेगा सर तो दे आर वेलकम सर। यस। जी सर, आप लोग जरूर भाग लेंगे। थैंक यू सर। ओके सर। जी सर। तो ये एक और नई बात आ गई, ऐसे हम और आप मिलकर साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा
हमारा सफर रहेगा। और हमारे जो इस ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के हेड है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, प्रोफेसर M.K. अवस्थी सर, हमेशा हमको एनकरेजिंग रहते हैं और उनका बहुत सहयोग मार्गदर्शन रहता है। तो मैं सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हमारे कॉलेज के, जिन्होंने इस प्रोग्राम की सफलता में अपना सहयोग दिया, अपनी क्लासेस को कुछ एडजस्ट किया, विद्यार्थियों को अलाउ किया इसमें जुड़ने के लिए। तो सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, और हमारा जो नाहिब है, नाहिब का सर एक ग्रुप है हमारा, उसमें लगभग हम लोग 25 के लगभग एसोसिएटेड साइंटिस्ट हैं, अलग अलग डिसिप्लिन, कृषि विश्वविद्यालय के अलग अलग डिसिप्लिन के। तो सभी लोग इसमें जुड़े और हमारी फैकल्टी जुड़ी, हमारे सारे विद्यार्थी, यानी यहाँ तक कि हमारे बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स भी सर इसमें जुड़े हुए हैं, जबकि मैंडेटरी हम लोग पीजी को जोड़ते हैं। पर आपका विषय इतना बढ़िया है कि सारे विद्यार्थी हमारे जुड़े रहे, तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और एक चीज जिसका आपने मेंशन किया था लोकेशन के संदर्भ में, कि प्रोग्राम कहीं से चलाया जा रहा है, कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं से इसकी लिंक डाली जा रही है, तो ऐसा सारा काम जो हमारे देखते हैं, हमारी एक युवा टीम है, टीम नाहिब, जिसमें हमारे डॉक्टर मीनाक्षी हैं, डॉक्टर सौरभ हैं, रचित नेमा हैं, और बहुत सारे लोग हैं, ओम प्रकाश हैं, एक पूरा करीब करीब ये 15 यूथ का ग्रुप है हमारे पास में। उनके माध्यम से हम ये पूरी चीजें, इस तरह की व्यवस्थाएं संचालित करते हैं, खासकर ये ऑनलाइन वाली सारी, इसके पीछे हम लोग सामने दिखते हैं, लेकिन पीछे मेहनत हमारी पूरी ये टीम नाहिब की होती है। तो मैं ये पूरी टीम नाहिब को धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे फैकल्टी को धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अपने क्लासेस को एडजस्ट किया, स्टूडेंट्स को अलाउ किया, और सबसे बढ़ के सारे प्रिय छात्रों को मैं जो है धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो हम हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इतनी देर बने रहे। बीच बीच में कुछ क्लासेस का समय हो रहा था तो कुछ बच्चे इधर उधर लेफ्ट कर गए। सर हमारे यहाँ पूरा जो टीचिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन चल रहा है, मतलब भले ही ये सब है, लेकिन हमने रोका कुछ नहीं है, विश्वविद्यालय ने, परीक्षाएं, प्रैक्टिकल सारे कुछ चल रहे हैं ऑनलाइन, तो इसलिए कुछ विद्यार्थी लेफ्ट कर गए हमारे। तो ओवरऑल बहुत बढ़िया सर आपका सानिध्य मिला, और आप सभी को साधुवाद। और आप बहुत कुछ इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें संकेत संकेत में बताते चले गए कि निश्चित वो, जैसे मानस का भी सर वो दे रहे थे कि सुनने से प्यास और बढ़ जाती है, तो ऐसी कुछ स्थिति है, तो अपन सर इसको आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का धन्यवाद। और कोई जो छूट गए हो, जिनका इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा हो, तो मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहेंगे। मैं आदरणीय डीन सर की आज्ञा से इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर श्रीवास्तव। थैंक यू सर, सर। नमस्कार सर, नमस्कार। तो सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ प्रसन्न रहें। कामना के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।